نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں سے ایک مبارک گھر میں ہم کو اور آپ کو اس وجہ سے اکٹھا فرمایا ہے کہ ہم آنے والے ایک اہم مہینہ جس کے اندر اہم عبادت کے احکام اور اس کے مسائل کو ہم جان سکیں، سیکھ سکیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں. ہر انسان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ جب وہ کوئی بھی عبادت کرے تو عبادت کرنے سے پہلے عبادت کے طریقے کو سمجھ لے، صحیح اور غلط کے مسائل کو جان لے، تاکہ عبادت کو علم کی بنیاد کے اوپر وہ انجام دے سکے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں رہتا. لہذا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں کبھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ کام ہم کیا کر لیتے ہیں؟ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم کو افسوس ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. حالانکہ ہمارے اوپر یہ واجب تھا کہ ہم عبادت میں داخل ہونے سے قبل عبادت کے طور طریقے کو جان لیں، اس کو سمجھ لیں. تو یہاں چونکہ ہم اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں تو ایسا ہے، پہلی بات ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ مسئلہ بہت ہے. ٹھیک ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ بہت ہے. تو آپ لوگ کتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہیں میرے ساتھ؟ بولیے. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بولیے آپ لوگ کے سفر کے. کیونکہ آپ جتنا وقت ہم کو دیں گے اسی حساب سے ہم مختصر کریں گے، کنکلوڈ کریں گے اپنے معاملے کو. ہاں 10 بجے تک بیٹھیں گے؟ بولیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جہاں تک ہم مسائل میں پہنچے ہم گفتگو کریں گے. یہ ایک کتاب ہم نے ابھی ایک جگہ اڑیسہ میں دورہ کیا تھا تو وہاں یہ ترتیب دی تھی. اسی کتاب کو ہم اپنے سامنے رکھے ہیں اور اسی حساب سے آپ کے سامنے مسائل کو بیان کریں گے. سب سے پہلے روزہ کی فرضیت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو. ایمان لانے والوں میں ہم داخل ہیں، یعنی انسان، اور کون؟ جنات، وہ بھی داخل ہے. یعنی انسان اور جنات کے مومنین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزے کو کیا کیا؟ فرض قرار دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ روزہ صرف ہماری خصوصیت نہیں ہے. ہم سے پہلے بھی جتنی امت گزر چکی ہیں، جتنی امتیں، ان تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو رکھا تھا، ہے نا؟ روزے کو رکھا تھا. ہاں ٹھیک ہے، طریقہ الگ الگ تھا، طریقہ مختلف تھا. جیسے اسی امت محمدیہ میں ابتدا میں جو روزہ فرض ہوا تھا نا، وہ کیسے ہوا تھا؟ آپ کو معلوم ہے ابتدا میں جو روزہ فرض ہوا، اب اگر کوئی آدمی افطار کیا، مثال کے طور پہ سورج غروب ہونے کے بعد افطار کر لیا، افطار سے لے کر کے
عشاء کی نماز ہونے تک کھانے پینے کی اجازت تھی، بس عشاء کی نماز جہاں ختم ہوئی اب پھر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی عشاء افطار کر کے اگر سو گیا اور عشاء کی نماز ہو گئی تو اب وہ کھا پی نہیں سکتا ہے، پھر دوسرے دن اس کو کھانا پڑے گا۔ یہ ابتدائی اسلام میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اور کچھ صحابہ سے اس سلسلے میں بے اعتدالی ہو گئی تو اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ اللہ نے یہ بات جان لیا کہ تم لوگ خیانت کر سکتے ہو، فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم کو معاف کیا، اس عبادت کو ہلکا کر دیا۔ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ خیط الابیض من الخیط الاسود، اس کو سمجھیے۔ کہا کہ رات کی جو تاریکی ہوتی ہے وہ کالی ڈوری کے مانند ہوتی ہے، کالی ڈوری، اس کو کہا خیط اسود، اور صبح کی جو سفیدی ہوتی ہے وہ سفید دھاری کے مانند ہوتی ہے، اس کو کہا خیط الابیض۔ حضرت عدی ابن حاتم نے جب اس آیت کو سنا تو اپنے گھر گئے، آیت تکیہ رکھا اور تکیے میں کیا کیا، میرے صاحب تو ساؤنڈ بڑھ سکتا ہے تو بڑھائیے اس کا۔ تکیے میں کیا کیا، ایک کالا دھاگا رکھا اور ایک سفید دھاگا رکھا اور اٹھا کر کے تکیہ دیکھتے رہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور سحری کرتے رہے۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا کہ ہم نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور حضرت جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے صرف اتنی آیت کا اتنا ٹکڑا لے کر کے خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، من الفجر، یہ فجر کا لفظ لے کر کے آسمان سے اترے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ، بخاری کی روایت ہے، کنفیوژن ہو رہا ہے، اسی کو درست کرو، دور کرو، خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادتوں کا طریقہ مختلف تھا، لیکن ہر امت کے اوپر روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا تھا، اس لیے کہ بغیر روزہ رکھے ہوئے جنت جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ بعض امتوں سے اس کو ہٹا لیتا، لیکن نہیں ہٹایا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ روزہ رکھنا کمپلسری ہے، ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ تو روزے کے تعلق سے ہوئی بات۔ یہاں ایک اور بات سنیے، نکتے کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلی امتوں کے اوپر کیے تھے؟ یہ کیوں کہا؟ بولیے، بول سکتے ہیں کوئی؟ اس لیے کہا کہ یہ ہماری اور آپ کی خاصیت ہے کہ پریشانی جب عام ہوتی ہے نا تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ سمجھے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اس کی ایک مثال سے سمجھیے۔ سکندر اعظم جب سکرات میں تھا، مر رہا تھا، تو اس کے سامنے اس کی ماں رو رہی تھی بہت زیادہ۔ ظاہر ہے بیٹا پریشانی میں تھا تو ماں کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ تو بیٹے نے ماں سے کہا کہ امی ایسا کرو، محل کے دروازے پر لکھوا دو، میرے بیٹے کی تعزیت کرنے کے لیے وہی آئے گا جس کو زندگی میں کبھی کوئی مصیبت نہیں ہوئی ہو، وہی آئے گا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو دوسرے دن کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو مصیبت نہیں ہے۔ احکام شریعت کو فقہی زبان میں تکلیف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تکلیف۔ اور اس تکلیف کے انجام دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مکلف۔ کیا کہتے ہیں؟ مکلف۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یعنی جتنا آپ کے اوپر کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کس طرح سے
کم کر رہا ہے اللہ رب العالمین. تو یہاں اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں ویسی تم سے سابقہ امتوں کے اوپر بھی کیے گئے تھے. سابقہ امتوں پر بھی کیے گئے تھے کیونکہ یہ چیز ہلکی ہو جائے کہ یہ عبادت ایسی نہیں ہے جو صرف ہمارے لیے ہے. یہ ہم سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی اس عبادت سے گزرنا پڑا ہے. سمجھ گئے اتنی بات؟ یہ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے بعد اللہ نے کہا ایام معدودات، اور ہلکا کر دیا، کہا گنتی کے چند دن ہیں. ابھی دیکھیے نا ہم سب لوگ استقبال رمضان کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر کچھ دن گزرے گا کہ ہمارا کیا ہوگا، پھر عید منا کے ہم لوگ فارغ ہو جائیں گے. یوں لگ رہا ہے کہ آج کل مہینہ جو ہے وہ ہفتے کی طرح گزر رہا ہے یا نہیں؟ کتنا سرعت سے، کتنی تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں، یہ ایام جا رہے ہیں، اس کا اندازہ بھی ہم لوگ نہیں لگا سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. یہ کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم لوگ حدیث سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اور احتساب مانے ترجمہ کرتے ہیں ثواب کی نیت سے. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ معالم السنن کے اندر لکھتے ہیں کہ احتساب کے معنی خالی ثواب کی نیت سے نہیں، خوش دلی سے روزہ رکھے. اب روزہ رکھا ہے، ارے آج 2 ہی دن ہوا ہے بھائی، دھوپ کالا میں ابھی 2 دن کٹنا اتنا مشکل ہو گیا، ابھی اور 28 دن کیسا کٹتا کہ کیا ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ، یہ بول رہا ہے تو اس کو اجر ملنے والا نہیں ہے. روزہ خوش دلی سے رکھنا پڑے گا. احتساب مانے عبادت کو بھاری نہ سمجھے. جیسے جیسے ایام گزرے کہے اللہ یہ روزہ اتنا جلدی سے کیوں نکل جاتا ہے، کیوں ہمیں عبادت کرنے کا اور موقع نہیں ملتا ہے. سمجھ رہے؟ شوق، جذبے اور لگن کے ساتھ کیا کرے، عبادت کرے. یہ مطلب ہے احتساب کا. اب اس کے بعد آئیے، اتنی بات جاننے کے بعد چونکہ وقت کم ہے تو روزہ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صوم. کیا کہتے ہیں؟ صوم. صوم کے کیا معنی ہیں؟ صوم معنی، صوم عربی زبان میں اس گھوڑے کو کہتے ہیں صائم جو کھانا پینا اور چلنا سب کچھ چھوڑ دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صائم. کسی بھی چیز کے چھوڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ صوم. کیوں نہیں ساؤنڈ بڑھا؟ یہ لگانے میں جھک جاتا ہے. تو اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو کھانا پینا چلنا کیا کرے، ترک کر دے. اس کو کہتے ہیں خیل صائم، ایسا گھوڑا جو روزہ رکھے ہوا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی بات کرنا چھوڑ دے اس کو بھی کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ صوم کہتے ہیں. دلیل اس کی حضرت مریم کو جب بچہ ہوا تو حضرت مریم لے کر چلی تو اللہ نے کیا کہا، جب کسی انسان سے تمہاری ملاقات ہو تو تم کیا کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ رب العالمین کے لیے روزے کی نیت نظر مانی ہے. کیا روزہ؟ فلن اکلم اليوم انسیا، آج کسی انسان سے میں بات نہیں کروں گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بات کرنے سے رکنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صوم. یہ اس کا ڈکشنری میں معنی ہوا. عربی ڈکشنری میں صوم کا معنی کیا ہے؟ تو یہی ہے. اب اصطلاحی معنی شریعت نے صوم کو کس معنی میں استعمال کیا ہے یہ جاننا ہے. تو کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک کھانا پینا اور اسی طرح سے روزے کے توڑنے والی چیزوں سے رک جانا، اجتناب کرنا، اللہ کی تقرب کے لیے یہ کیا کہلاتا ہے؟ صوم. صوم اللہ کی تقرب کے لیے یہ ضروری ہے. اگر یہ شرط نہیں لگائیے گا تو روزہ
नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही रोजा रखते हैं, क्यों? दुबले होने के लिए, पतले होने के लिए, डाइट करना, उसके लिए रोजा रखते हैं। तो क्या उनका रोजा होगा? या कोई मुसलमान आदमी भी दुबला होने के लिए रोजा रखे तो क्या उसको सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको नियत क्या करनी पड़ेगी? अल्लाह की रजामंदी के लिए। अल्लाह की रजामंदी के लिए खाना पीना अगर छोड़ता है, अल्लाह को राजी करने के लिए, तब जाकर के वो रोजा होगा। ये रोजा का मतलब हुआ। इस महीने को क्या कहते हैं? इस महीने को क्या कहते हैं? शाबान। जिसमें रोजा रखते हैं भाई, उस महीने को रमजान। क्या कहते हैं? रमजान नहीं, रमजान नहीं, क्या? रमजान। मीम के ऊपर जबर है, रमजान। शहरु रमजान अल्लज़ी, अल्लाह ताला ने रमजान इस्तेमाल किया। रमजान को रमजान क्यों कहते हैं भाई? क्यों कहते हैं? उसके तीन माना है, गौर से सुनिए एक एक चीज को। तीन माना है। रमजान के लुग़वी माने हैं जला देने के, जला देने के। और रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? तो उलमा कहते हैं कि उसके तीन मानी हैं। नंबर एक, रोजा इंसान के गुनाहों को क्या करती है? जला देती है। उसी को कहा मन सामा रमजाना, जो रमजान के रोजे रखे, ईमानन व इहतिसाबन, ईमान के साथ और अल्लाह से सवाब की नीयत रखते हुए, खुश दिली के साथ, गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह को क्या करता है? माफ कर देता है। और जिसके सगीरा गुनाह नहीं है उसके क्या करता है? उसके कबीरा गुनाह में कमी कर देता है। या सगीरा कबीरा कुछ भी नहीं है तो उसके दर्जात में बुलंदी कर देता है। समझ रहे? ये सब फायदे हैं। तो एक वजह यह है कि यह गुनाहों को जला देता है। दूसरी वजह क्या है? रमजान। तो रमजान कहते हैं, रमजान में मोमिन का सीना इबादत करने के लिए गर्म हो जाता है। देखिएगा, साल के 11 महीना आदमी सही से इबादत नहीं करता, लेकिन रमजान में आकर के मस्जिदों से लग जाता है, इबादत करने लगता है। हर आदमी, फासिक व फाजिर आदमी भी गुनाह को अगर पूरे तरह से नहीं भी छोड़ता तो थोड़ा कम कर देता है, लिहाज करता है लोगों का। आमतौर पे सड़क पे चल करके सिगरेट पी रहा है, रोजा नहीं भी रखा है तो मुसलमान अगर है तो देखिएगा ओपनली नहीं पिएगा, थोड़ा छुपेगा, बचेगा। समझ रहा है? होता है ऐसा, हालांकि वो भी गलत है। उसको रोजा रखना चाहिए और सिगरेट छोड़ना चाहिए। हाँ, अभी आएगी बात, आपके सामने आएगी। तो दूसरा माना यह हुआ कि मोमिनों का सीना इबादत के लिए क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तीसरा माना बयान करते हैं कि जो रोजा रखता है उसके पेट के अंदर जलन होती है। एक माना यह है, भूख और प्यास के शिद्दत की वजह से। और कहते हैं यही मुनासबत है, जन्नत में कितने दरवाजे? 8। और जहन्नम में बोलिए 7। जन्नत में भी 7 ही थे। अल्लाह ने एक दरवाजा एक्स्ट्रा लगाया, रैयान नाम रखा उसका। रैयान री से है, री के माने सैराब होना, सैराब होना। तो अल्लाह ताला वो लोग जो रोजा रख करके दुनिया में अपने पेट को भूख और प्यास से जलाते हैं, अपने हलक को सुखाते हैं, कल क़यामत में उस दरवाजे से गुजारेगा जहां वो सैराब हो जाएंगे। हाँ, पूरे तौर पे उनके जिस्म में सैराबी आ जाएगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो दरवाजा है जिससे सिवाय रोजेदार के और कोई भी नहीं गुजरेगा, सिवाय रोजेदार के और कोई दूसरा इस दरवाजे से गुजरने वाला नहीं होगा। ये तीनों माना किसके हुए? रमजान के हुए। अब आइए देखते हैं रोजा किन पर वाजिब है। रोजा किन पर वाजिब है? नंबर 1 शुमार कीजिएगा, मुस्लिम के ऊपर। किसके ऊपर? मुस्लिम के ऊपर, यानी रोजा रखने वाला। उधर से नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ गया है, वो ऊपर का साउंड बंद कर देना है मोहल्ले में। हाँ है, बाहर अच्छी से आ रहा है। अच्छा अच्छा। नंबर 1 मुस्लिम।
तो क्या गैर मुस्लिम के ऊपर रोजा फर्ज नहीं है? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए ताकि जल्दी जल्दी चलेंगे। गैर मुस्लिम के ऊपर रोजा फर्ज है कि नहीं है? हैं? फर्ज है या नहीं है ये बोलिए। है। क्या है? है। कैसे? कल अल्लाह ताला जहां शिर्क और कुफ्र के ऊपर उसको अजाब देगा ना, वहां रोजा छोड़ने के ऊपर भी अजाब देगा, नमाज नहीं पढ़ने के ऊपर भी अजाब देगा, ज़कात नहीं देने के ऊपर भी उसको अजाब देगा। दलील उसकी क्या है? फी जन्नाति यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। जब कल जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, मुजरिमों से, तुमको कौन सी चीज जहन्नम में ले आई, तो क्या कहेंगे? लम नको, बोलिए, मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, सदका व खैरात नहीं करते थे। वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, तब आकर के कहा कि यौम आखिरत का इनकार करते थे, यानी बेईमान थे, मोमिन नहीं थे। हत्ता अतानल यकीन। तो जहां अल्लाह ताला उनको कुफ्र के ऊपर अजाब देगा, वहीं रोजा छोड़ने के ऊपर, नमाज छोड़ने के ऊपर, सदका व खैरात छोड़ने के ऊपर भी अजाब देगा। तब रहा कि अगर कोई गैर मुस्लिम कहे कि हम रोजा रखेंगे तो सवाब उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ईमान नहीं है, इसीलिए नहीं मिलेगा। तब हम इस वजह से कहते हैं कि वो रोजा जो सवाब देगा अल्लाह के फजल और उसके तौफीक से, वो किसका रोजा है? मुसलमान का रोजा है, गैर मुस्लिम का रोजा नहीं है। समझ गए इसको? अब आइए नंबर 2, बालिग होना चाहिए, मर्द हो या औरत। रोजा रखने के लिए जरूरी है कि वो क्या हो? बालिग हो। अब बुलूगत की उम्र क्या है? तो मौसम के एतबार से, शहर के एतबार से, ठंडा और गर्म इलाके के एतबार से ये उम्र तब्दील होती है। हिंदुस्तान में आमतौर पर 12 साल से लेकर के 15 साल माना जाता है, लड़के और लड़की दोनों के लिए, कि ये उम्र है उसके बुलूगत का। कोई 11 साल में, कोई 12 साल में, कोई 13 साल में, कोई 14 साल में, कोई 15 साल में वो क्या हो जाता है? बालिग हो जाता है। और उसके मुख्तलिफ पहचान बताए गए हैं, उन तफसील में हम नहीं जाना चाहते, आप लोग उसको जानते होंगे, समझते होंगे। तो बालिग होना चाहिए रोजा रखने के लिए। छोटा बच्चा रोजा रखेगा तो बोलिए नहीं होगा, सवाब मिलेगा उसको अगर छोटा बच्चा भी है। बल्कि उलमा कहते हैं कि छोटे बच्चे को भी रोजा रखवाना चाहिए। आमतौर पे हमारी माएँ बहनें आज क्या करती हैं? कहती है नहीं रोजा नहीं रखो बाबू, तुम नहीं रखो, कमजोर हो जाओगे। नहीं, शौक से अगर बच्चा सेहरी में उठ रहा है तो उसको सेहरी खाने देना चाहिए। हाँ ठीक है, 12-1 बजे थक गया तो बोले बेटा पानी पी लो, कोई हर्जा नहीं, तुम्हारे ऊपर रोजा नहीं है, पी लो। तो लोग उल्टा समझते हैं, कहते हैं रोजा नहीं रखो, तोड़ दोगे तो उसका कफारा बहुत देना पड़ेगा। अरे उसके ऊपर रोजा ही नहीं है, वो काहे को कफारा देगा? क्यों कफारा देगा? लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए अगर वो बेचारा रख रहा है तो रखने दीजिए। अब क्या करते हैं, 14 साल 15 साल तक एक रोजा भी नहीं रखा और 15 साल के बाद उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया, अब रखता है तो भारी लगता है, कहता हमको चक्कर दे रहा है, कहता हमको फला हो रहा है, कहता हमको फला हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो ऐसा मुनासिब नहीं है। सहाबा किराम अपने छोटे छोटे बच्चों को रोजा रखवाते थे और जब असर के बाद बच्चा रोने लगता भूख से तो उसको खेलने के लिए कुछ खिलौना दे देते, लो बेटा खिलौना से खेलो। कोई गाड़ी दे दिया, कुछ और दे दिया, वो बच्चा खिलौना खेलते खेलते भूख भूल जाता था। बच्चों को खेल में लगा दीजिए तो उनको खाना पीना भी याद नहीं रहेगा और उसके बाद जब इफ्तार का वक्त होता तो उसको इफ्तार करा देते। हम लोग इस चीज से गाफिल हैं। हम अपने बच्चों की तरबियत इस लिहाज से भी कर सकते हैं। छोटा बच्चा को भी रोजा, हाँ पूरा रोजा मत रखवाइए कि बेचारा बीमार पड़ जाए। एक रोजा संडे को छुट्टी है, का बेटा आज रख लो रोजा, हाँ अब उसको वॉच करते रहिए, देखिए कमजोर पड़ जा रहा है क्या, देखिए तकलीफ तो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो कहिए तो खा लो, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन 7 साल 8 साल का बच्चा है, उसको रखवाइए रोजा, कम से कम 2 रोजे 5 रोजे 8 रोजे 7 रोजे जितना वो रख सकता है उतना उसको रखवाइए। ये रखवाना चाहिए उसकी प्रैक्टिस के लिए। अब उसके बाद आइए, आकिल होना चाहिए। आकिल माने पागल नहीं होना चाहिए। अगर पागल है तो उसके ऊपर रोजा बोलिए
فرض نہیں ہے, وہ بیچارے کے اوپر کوئی عبادت فرض نہیں ہے, کوئی عبادت. اللہ تعالیٰ قیامت میں اس سے نہیں پوچھے گا. ہاں وہ حق جو اللہ کا ہے وہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے, لیکن وہی پاگل کسی کا سر پھوڑ دیا مار کے, تو کیا کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ اس سے جرمانہ لیا جائے گا, قصاص نہیں لیا جائے گا, جرمانہ لیا جائے گا. اسی طریقے سے پاگل آیا, آپ کا موبائل اٹھا کر کے پٹک دیا, پھوڑ دیا, تو کیا کہیے گا؟ اس کا جو ولی ہے, اس کا جو گارجین ہے, وہ آپ کے موبائل کی قیمت ادا کرے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاگل ہے کر دیا نا اب کیا ہے. یہ یہاں کے قانون میں چلے گا, اللہ کے قانون میں نہیں چلے گا. کسی کو بچانا ہے تو اس کو پاگل گھوشت کر دیا عدالت میں لے جا کر کے, جرم کر دیا اور کہہ دیا کہ مینٹلی ڈسٹرب ہے, اس وجہ سے نردوش خلاص کر دیا گیا. اللہ کے یہاں ایسا نہیں چلے گا. اگر آپ نے دوسرے کو, ہاں اللہ کے حکام میں آپ نردوش ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, روزہ نہیں رکھتے ہیں کوئی حرج نہیں, کیونکہ پاگل ہے بیچارہ وہ. لیکن اگر پاگل نہیں ہے تو اس کے اوپر روزہ کیا ہے؟ واجب ہے, اس کو رکھنا پڑے گا. یا عاقل سمجھ گئے؟ اچھا, اسی سے مسئلہ نکالیے, مسئلہ سمجھیے گا. ایک آدمی ہے, بہت عمر دراز ہو گیا, بہت عمر دراز, بستر میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, چلتا پھرتا بھی ہے کبھی کبھار, لیکن کوئی جائے اس سے, سلام علیکم نانا. کون ہو بابو تم؟ ہم تم کو نہیں پہچانتے ہیں. کون ہو؟ حالانکہ اسی کے گھر کا بچہ ہے, نہیں پہچان رہا. پوچھ رہا ہے ابھی دن ہے کہ ابھی رات ہے بابو؟ ہاں کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ ابھی کھانا دیا ہے اس کھانے کے لیے ان کو. پھر پوچھ رہا ہوں بھوک لگی ہے نا ہم کو, تو کھانا نہیں دیا ابھی آپ نے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو عمر دراز ہو جاتے ہیں, تو ایسے آدمی روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ بولیے, بولیے, جلدی جلدی بولیے, کیا کریں گے؟ روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا کریں گے؟ ہاں روزہ رکھوائیں گے, مطلب فدیہ دیں گے, یہی نا, فدیہ دیں گے. سن لیجئے مسئلہ, فدیہ نہیں دیں گے, روزہ بھی نہیں رکھیں گے, اس کا حکم کہاں آئے گا؟ یہی پاگل میں آ جائے گا اس کا حکم. ایسا آدمی جس کو دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہو, وہ کس میں چل جائے گا؟ پاگل میں. نہ تو وہ روزہ رکھے گا اور نہ فدیہ دے گا. سمجھ گئے مسئلہ کہ نہیں سمجھے؟ اچھا, اسی سے ملائیے اس کو جو آئی سی یو میں ہے, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, پائپ لگا ہوا ہے, ادھر ادھر پڑا ہوا ہے, سانس لے رہا ہے, بس آواز دے رہے ہیں عبداللہ 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 عبد الرحمن, کچھ نہیں, سانس لے رہا ہے بس, کچھ نہیں. کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے گا؟ بولیے, بولیے بھائی. ابھی پڑھے نا مسئلہ, ابھی آپ اس کو کس کے حکم میں لے جائیں گے؟ وہی پاگل کے حکم میں لے جائیں گے, وہی پاگل کے حکم میں لے جائیں گے. لیکن اس کی دو قسم, ایک تو یہ کہ پھر بیچارہ ٹھیک ہو گیا, صحت مند ہو گیا, تو اب علماء کا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, چونکہ وہ بے ہوش تھا اسی لیے روزے اس کے اوپر نہیں تھا, اس کو روزہ نہیں رکھنا پڑے گا. اور یہی زیادہ صحیح مسلک ہے کہ اس کو روزہ نہیں رکھنا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. اب اس کے بعد آئیے, روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہو وہ آدمی, روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہو. قادر کا ہو کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے پاس طاقت ہو, اتنی قوت ہو کہ وہ روزہ رکھے, یا کوئی بیماری نہ ہو, ایسی بیماری جو اس کو روزے سے روکنے والی ہو. اسی طرح سے وہ آدمی مسافر نہ ہو, اپنے شہر میں رہنے والا ہو. یہ ساری چیزیں روزہ رکھنے کے اوپر قدرت والی بات ہے. اور پانچویں چیز مقیم ہو, مسافر نہیں ہو. کیونکہ اگر مسافر ہے تو کیا کرے گا؟ بولیے, مسافر ہے تو بولیے بھائی, روزہ چھوڑ دے گا اگر چھوڑنا چاہے تو, اور اس کے بعد قضا کرے گا بعد میں. اب یہاں مسئلہ سمجھیے. ایک آدمی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا میں سفر میں ہوں, ایک دم ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, اے سی میں بیٹھ کے سفر کر رہا ہوں, میرا کوئی دقت نہیں ہے, ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں. کیا کہیے گا اس کو؟ بولیے گا آپ رکھ لو,
کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے کہے گا ہم کو سفر میں تھوڑی دقت تو ہوگی، لیکن اگر میں نے رمضان کے روزے چھوڑ دیے تو پھر 11 مہینہ میں اس کی قضا نہیں کر سکوں گا، تو اس کو کیا کہیے گا؟ بولیے گا تو رکھ لے روزہ رمضان میں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہم کو بہت دقت ہوگی، مشقت ہوگی سفر میں روزہ رکھنے میں، تو ایسی صورت میں اس کو کہیں گے تم روزہ چھوڑ دو، مئی جون کا بھی روزہ ہے چھوڑ دو، جنوری میں اس کی قضا کرنا، تمہاری قضا کیا ہو جائے گی؟ یعنی جنوری بول رہا ہوں جب چاہے تب کرنا، تمہاری قضا ہو جائے گی، تم کو کوئی حرج نہیں ہے، مسافر کو چھوٹ ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، ایک آدمی آ کر کے یہ کہے کہ مولانا ایک آدمی سفر کر رہا ہے، آسانی سے گاڑی میں بیٹھ کر کے جا رہا ہے، اے سی میں، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جا رہا ہے، آپ اس کو بول رہے روزہ چھوڑ دو، میں دھوپ میں کام کرتا ہوں، ہیٹ ڈھوتا ہوں، لے کر کے 5ویں منزل پہ چڑھتا ہوں، راج مستری کا کام کرتا ہوں، یا دن بھر دھوپ میں بیٹھ کر کے کام کرتا ہوں، میرے کو پیاس لگتی، بھوک لگتی ہے، میں کیا کروں؟ کیا کیجئے گا اس کو؟ یا کوئی باورچی آ کر کہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک تندور کے سامنے کھڑے ہو کر کے روٹی بناتا ہوں، ظاہر ہے اس کو زیادہ پیاس لگے گی نہیں لگے گی جو آگ کے سامنے کھڑا ہے صبح سے لے کے شام تک؟ اس کو مشقت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بھائی، ہے؟ تو یہ کیا کرے گا؟ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑے گا۔ کہ کیوں؟ کہ اسی کا نام شریعت ہے۔ اللہ نے مسافر کے تکلیف کا اعتبار کیا، مقیم کے تکلیف کا اعتبار نہیں کیا۔ تب کہے کہ ہم نہیں سکیں گے تو کہے تم ایک کام کرو، کام چھوڑ دو، رات میں کام کرو، شفٹ بدل لو اپنی، صبح میں جو شفٹ تمہاری چل رہی تھی اس کو تبدیل کر لو، اب بولو کہ افطار سے لے کر کے سحری تک ہم کام کریں گے، لیکن روزہ چھوڑ نہیں سکتے۔ سمجھ گئے مسئلے کو؟ آج لوگ کہتے ہیں مول صاحب ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، میرا کام ہے، میں ایسا کام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا چلیے، کہا کہاں چلیں؟ لے کر کے چلا، ایک پہاڑ تھا، کہا پہاڑ میں چڑھیے، پہاڑ میں چڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نہیں چڑھ سکتے، بہرحال آپ کو چڑھایا گیا پہاڑ میں۔ جب ادھر دیکھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، فرشتے ان کو مار رہے ہیں لوہے کی کنگھیوں سے، ان کے منہ کے گوشت کو اور چمڑا کو نوچ رہے ہیں، اور وہ چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، چڑھ 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 کی آواز آ رہی ہے۔ قصاب کو دیکھتے ہوں گے چمڑا جب اتارتا ہے کھینچتا ہے تو کیسی آواز آتی ہے؟ کہ ویسی وہ لوہے کی کنگھی مارتا ہے یہاں سے، چڑھ 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 ایسے کھینچ لیتا ہے اس کے چمڑے کو، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ کھینچ کے جو اس کے کنگھی میں گوشت ہے اس کو ادھر جھاڑتا ہے، تب تک اس کا ادھر یہ بن کے ایک دم فریش ریڈی ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ کھینچتا ہے۔ کہا کون ہے بھائی یہ اس قدر عذاب ہو رہے؟ کہا یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ چور تھے، روزہ خور تھے، تھوڑی تھوڑی سی بات میں روزے کو چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں روزہ نہیں رکھا بھائی؟ دانت میں درد ہو گیا۔ دانت میں درد روزہ چھوڑنے کا باعث ہے؟ کیوں نہیں روزہ رکھا مولوی صاحب؟ یہ انگلی میں دیکھیے نا پھوڑا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے۔ سمجھ رہا ہے؟ آج بہانہ چاہیے ہم کو، صرف تھوڑا سا بہانہ چاہیے، سب سے پہلا کام جو ہے ہم روزہ چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر تھوڑی بہت تکلیف ہے، ارے بھائی سر میں کس کے درد نہیں ہوتا، پیٹ میں کس کے درد نہیں ہوتا، روز ہوتا ہے، پیر میں کس کے درد نہیں ہوتا، کان میں کس کے درد نہیں ہوتا، دانت میں کس کے درد نہیں ہوتا۔ علماء کہتے ہیں روزہ رکھو، اللہ اپنے فضل سے، اپنے توفیق سے تم کو شفا دے دے گا، ٹھیک کر دے گا روزے کی برکت سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے روزہ چھوٹی بیماری میں آدمی کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 6، حیض و نفاس سے پاک ہونا چاہیے عورت کو۔ کوئی عورت ہے حائضہ اگر ہے تو اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے نفاس ہے والی اگر عورت ہے تو اس کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہو جائے، اس کے بعد کیا کرے گی؟ وہ روزہ رکھے گی۔ ابھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ روزہ کے اچھا روزہ واجب کب ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ کب واجب ہوتا ہے روزہ؟ بتائیے، جلدی جلدی بتائیے تاکہ چلیں گے۔ چاند
دیکھ کر کے, چاند دیکھ کر کے. اچھا, انٹرنیٹ میں اگر پتہ چل جائے کہ مکے میں چاند ہو گیا تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ بولیے کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ ہیں؟ بولیے نہیں رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے؟ کیوں نہیں رکھیں گے؟ اس لیے نہیں رکھیں گے کہ اللہ کا شریعت انٹرنیٹ پہ مبنی نہیں ہے. جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو مکے سے خبر ہم کو کیسے ملتی؟ اور اگر آج مان لیجئے, آج کی رات, ایک مثال دے رہا ہوں, سعودی عرب میں 29 تاریخ ہے, اگر آج کی رات ہمارے پورے ہندوستان کا انٹرنیٹ کیا ہو گیا؟ دکھ گیا چاند. چلیے الحمدللہ. اگر انٹرنیٹ ٹھپ ہو جاتا, ابھی واٹس ایپ نہیں ہوتا, انٹرنیٹ نہیں ہوتا, تو کیسے پتا چلتا؟ تو شریعت کا اتنا اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رکھے گا. کچھ لوگ فلکیات والے حساب لگا کے کہتے ہیں کہ چاند پیدا ہو گیا ہے, چاند نکل گیا ہے, وہ دکھ نہیں رہا ہے, چاند تو بن گیا. تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں بھائی, چاند تو موجود ہے. عبادت فرض کب ہوتی ہے؟ جب ہم اس کو دیکھ لیں تب. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب ہم اس کو دیکھ لیں تب جا کر کے. اب کہیے گا مولوی صاحب آپ تو ایسا کہہ رہے ہو, اس کا مطلب اندھا تو دیکھ بھی نہیں کرے گا, تو کیسے رکھے گا؟ یہ بھی سوال کرتے ہیں کچھ لوگ. دیکھ لو کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب اندھا کہاں دیکھے گا تو روزہ نہیں رکھے گا. تو اندھا سنے گا تو ہاں اپنے بغل والے سے سنے گا, پوچھے گا, اس سے وہ روزہ رکھے گا. لیکن دور والا, حضرت عبداللہ ابن عباس کے زمانے میں شام میں چاند نظر آ گیا جمعہ کو, اور مدینے میں کب نظر آیا؟ سنیچر کو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام ہے قریب, وہ شام میں تھے, شام سے آئے مدینہ, اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ ہم لوگوں نے جمعہ سے روزہ رکھا ہے. تو کہا ٹھیک ہے, تم لوگوں نے چاند دیکھا تھا تو رکھا ہے. کہا کیا معاویہ کی شہادت آپ قبول نہیں کریں گے؟ امیر معاویہ کی شہادت؟ کہا نہیں. ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. ان کا چاند ہو گیا, انہوں نے رکھ لیا. ہمارا چاند یہاں جمعہ کو ہوا, ہم جمعہ سے روزہ رکھیں گے. سمجھے مسئلے کو یا نہیں سمجھے؟ تو آنکھ کے اوپر ہے معاملہ. ہاں ٹھیک ہے, ہمارے آس پاس میں حیدرآباد میں چاند نظر آ گیا, اور آپ کے امیر نے, چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے تو امیر کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہے, یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس کے رویت کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے, تو اطاعت امیر میں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ روزہ رکھنی چاہیے. ایسے امت کے شیرازے کو بکھیرنا نہیں چاہیے. کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ سب کو واضح ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. چلیے اب اس کے بعد آتے ہیں روزہ کی اقسام کیا ہیں. روزہ کی عام طور پر 2 قسم ہے, ایک فرض روزہ اور ایک نفل روزہ. فرض روزہ کون کون ہے بولیے تو, بولیے جلدی جلدی. رمضان ایک, اور ہاں عرفہ نہیں, فرض نہیں ہے. دیکھیے رمضان کا روزہ فرض ہے نمبر 1. نمبر 2 نظر کا روزہ. کسی نے نظر مانا تھا کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے 2 دن روزہ رکھوں گا, 3 دن روزہ رکھوں گا, یہ کیا ہوا؟ فرض ہو گیا. اسی طریقے سے قضا کر رہا ہے رمضان کا, وہ کیا ہے؟ فرض ہے. اسی طرح سے کفارہ دے رہا ہے, وہ کیا ہے؟ فرض ہے. یہ 4 قسم. اور رمضان کا روزہ, یہ ملا کر کے کتنا ہوا؟ 5 قسم کے روزے ایسے ہیں جو فرض ہیں. سمجھے نہیں سمجھے اس کو؟ سمجھے کہ نہیں؟ بہت اہم مسئلہ ہے اس کے اوپر, اس لیے میں نے فرق کیا ہے دونوں کو. بہت اہم مسئلہ ہے. تو یہ 5 قسم کے روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں. اس کے علاوہ جتنے روزے ہیں, محرم کے روزے اور عرفہ کے روزے اور عاشورہ کا روزہ, وہی محرم کا 10 محرم عاشورہ کا روزہ, یا شوال کا 6 روزہ, یہ سب کے سب کیا ہے؟ یا جمعرات اور پیر کا روزہ, یا 13 14 15 چاند کی تاریخ کا روزہ, یہ سب کیا ہے؟ نفل روزہ ہے. تو نفل اور واجب کو فرق کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں پڑی؟
इसलिए कि दोनों के नीयतों में फर्क है, दोनों के नीयतों में फर्क है। गौर कीजिएगा, फर्ज रोजा अगर आप रख रहे हैं तो उसके लिए रात में नियत करनी शर्त है। सहरी से पहले पहले आपको नियत करना पड़ेगा। और नियत कैसे करेंगे? कैसे करेंगे नियत? दिल से करेंगे। जबान से नियत साबित नहीं है, दिल से नियत। और दिल से नियत कैसे? अरे भाई आप सहरी का इंतजाम कर रहे हैं, दूध ला करके रख रहे हैं, ब्रेड ला करके रख रहे हैं, और जरूरतें मुहैया कर रहे हैं, घड़ी में अलार्म लगा रहे हैं, 3:30 बजे उठना है, घर में कह रहे हैं कि देखो उठना, जरा एहतियात करना, अलार्म बजे तो जगना। ये सब कहते हैं नहीं कहते हम लोग? तो ये सब क्या है? सब नियत है, सब नियत है। तो इस नियत को क्या कहते हैं? नियत की दो किस्म, बहुत गौर से सुनिएगा। आम तौर पे अकीदा में जहां नियत की बात होती है, इस नियत का जिक्र नहीं होता है। नियत की दो किस्म है। एक नियतुत तकर्रुब, नियतुत तकर्रुब माने रोजा हम इसलिए रख रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। ये क्या है? नियतुत तकर्रुब, अल्लाह से कुर्बत हासिल करने की नियत। और एक है नियतुत तायीन, नियतुत तायीन। तायीन माने क्या है? अभी समझा रहे हैं मिसाल से आपको। एक आदमी फजर के वक्त में आया मस्जिद में, 2 रकत पढ़ा नमाज। अब ये फर्ज पढ़ा कि नफिल पढ़ा, कैसे समझ में आएगा? क्योंकि फजर की फर्ज भी कितनी है? 2 है, और सुन्नत भी कितनी है? 2 है। वो पढ़ा आकर के, अब कैसे समझेंगे कि फर्ज पढ़ा कि नफिल पढ़ा? बोलिए भाई। नियत से, नियत से। वो नियत करेगा कि हम ये नफिल पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे किसी को फ्लाइट पकड़नी है 5:30 बजे, 5:30 बजे जमात है, 5:20 पे मस्जिद पे आया और 2 रकत फजर फर्ज उसने पढ़ ली, पढ़ सकता है, और गाड़ी में अपना बैठा, बैग उठाया, चला गया एयरपोर्ट। तो कैसे समझ में आएगा कि ये सुन्नत पढ़ा है कि फर्ज पढ़ा है? नियत करेगा कि हम ये फर्ज पढ़ रहे हैं। उसकी एक और मिसाल लीजिए। धूप में चल करके आए कहीं से, गुस्ल खाने में गए, पानी डाल लिया बदन के ऊपर, और बाहर निकल गए। ये गुस्ल कौन सी गुस्ल हुई? आदत या इबादत? बोलिए। आदत। ठंडक हासिल करने के लिए आपने गुस्ल किया। अच्छा, नापाक थे, गुस्ल किया, तो ये आदत है या इबादत है? इबादत। दोनों का तरीका एक ही है। शावर खोल के उसके ऊपर खड़े हो रहे हैं, बदन मल रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, सेम तरीका है, लेकिन एक सवाब का काम है, दूसरा आदत है। ये फर्क कैसे होगा? नियत से फर्क होगा। इसीलिए फुकाहा कहते हैं कि जो आदमी जुनूबी है, गौर से मसला सुनिए, यानी नापाक है, और अगर वो बगैर नियत किए हुए गुस्ल खाने में गया, पूरा समंदर भी उंडेल ले अपने ऊपर, और उसके बाद निकले तो पाक नहीं होगा, नहीं पाक होगा। उसको पाकी हासिल करने की नियत करनी पड़ेगी गुस्ल करने के लिए। नौजवान खवातीन भी हो वो भी सुने, और आप हजरात भी सुनिए इस मसले को। इस पर बहुत कम गुफ्तगू होती है। हम लोग समझते हैं कि नहाना नहाना, पानी नहाना है, बस नहा के निकल जाते हैं। कसम अल्लाह की, अगर नियत नहीं किया है, अब पानी ढाल के निकल गए, तो मस्जिद में आपका बैठना हराम, नमाज पढ़ना हराम, जो इबादत किया वो इबादत भी नाकाबिल कबूल। इसलिए नियत सिखाइए। इन्नमल आमालो बिन्नियात। तमाम मुहद्दिसीन में, अक्सर मुहद्दिसीन ने अपने किताब की शुरुआत किससे की है? इसी हदीस से की है। क्यों? नियत को बतलाने के लिए, नियत को बतलाने के लिए। इसीलिए नियत सिखाइए, बच्चों को नियत सिखाइए, उनको बतलाइए। तो एक तो ये तायीन करना है कि हम ये फर्ज रोजा रख रहे हैं, और दूसरी नियत क्या करनी है? अल्लाह की तकर्रुब के लिए कर रहे हैं। ये 2 नियतें रोजे में एक साथ होनी चाहिए। ये फर्ज रोजे की बात हुई। नफिल रोजा अगर आदमी जवाल से पहले पहले उसकी नियत कर ले तब भी हो जाएगा। दलील क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के पास आते थे जवाल से पहले, नाश्ते के वक्त में, और पूछते थे क्या घर में कुछ खाने को है? तो अगर अज़वाज मुतहरात कह देती थी कि हाँ कुछ है, तो आप कहते थे लाओ, आप खा लेते थे। अगर पूछते थे कुछ है घर में,
कहती थी नहीं कुछ भी नहीं है, तो आप कहते थे आज मैं रोजे से हूं। तो पता चला कि अगर जवाल से पहले पहले एक आदमी सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ा, कुछ नहीं खाया, 11 बज गया, 11:30, 12 बज गया, एक घोंट पानी तक नहीं पिया, एक कप चाय तक नहीं पिया, कुछ नहीं खाया, अब उसका ख्याल आया कि आधा दिन तो गुजार दिया है और आधा दिन है बाकी, आज रोजा रख लेते हैं, क्या हर्ज है? तो रख सकता है कि नहीं रख सकता है? बोलिए जल्दी से, कब रख सकता है? नफिल रोजा है तो रख सकता है, फर्ज रोजा है तो नहीं रख सकता, फर्ज रोजा है तो नहीं रख सकता। समझ गए नियत के मुतालिक बातें? अब रोजा के अरकान देखिए, सबसे पहला रुकन है रोजे की नियत करना, और दूसरा रुकन है रोजा तोड़ने वाली चीजों से क्या करना? बचना। वो चीजें जिनसे रोजा टूट जाती है, टूट जाता है, रोजा तोड़ने वाली चीजों से इज्तिनाब करना, बचना। पानी कम है क्या? डालिए ना भाई। तोड़ने वाली चीजों से बचना। तो अभी हमको यह भी समझना है कि कौन सी चीज रोजा तोड़ने वाली है। कोई सवाल है जी? हाँ, यह एक अहम मसला था, छूट गया था। इस सिलसिले में फुकहा का इख्तिलाफ है, हर रोजे के लिए नियत करनी पड़ेगी या पहले दिन एक रमजान को नियत कर लिया काफी हो जाएगा? अगर आप कंटिन्यू रोजा रख रहे हैं, बीच में आप सफर नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपका पहला दिन जो नियत है वो चल जाएगा। लेकिन अगर बीच में आप बीमार पड़ गए, 2-3 रोजा छोड़ दिया, तो जब फिर से रखने की इब्तिदा करेंगे फिर नियत करनी पड़ेगी। या औरत है, हाइजा हो गई बीच में, अब जब पाक होकर के वो रोजा रखेगी तो फिर से नियत करेगी। नहीं तो अगर कंटिन्यूअसली आप रखे जा रहे हैं तो हर दिन नियत करने की जरूरत नहीं है। हो गया क्लियर? वाज़े हो गया मामला? अब उसके बाद है ये रोजा के मुतालिक मर्ज या बीमारी के अकसाम, बीमारी के किस्म है। ऐसी बीमारी जिसके ठीक होने की उम्मीद ना हो, ठीक होने की उम्मीद नहीं हो, वो आदमी क्या करेगा? हर रोजे के बदले में 1.5 किलो तकरीबन चावल या गेहूं, मकई, बाजरा, जौ, जो चाहे वो एक मिस्कीन को देगा। हर रोजे के बदले में कितना? 1.5 किलो। तो 30 रोजा का कितना होगा? 45 kg, 45 किलो, 40 पर 5 किलो। अब चाहे एक को दे दे, चाहे 3 को दे दे, चाहे 5 को दे दे, चाहे 8 को मिस्किन को दे दे, लेकिन कोशिश करे कि मुसलमान हो, रोजेदार हो और मोहताज हो, उसको दे। गैर मुस्लिम को नहीं दे सकता है। ये हम लोग कहते हैं ना रोजा रखवाना, तो ये रोजा रखवाना नहीं है, ये फिदिया देना है। अब किसी के पास फिदिया देने की ताकत नहीं है तो क्या करेगा? वो सामान हो वलीयहू, उसके जानिब से उसका बेटा रोजा रखेगा, या उसका जो वली है, उसका जो वारिस है, वो रोजा रखेगा। कैसे रखेगा रोजा? रमजान के रोजे हो गए मेरे पूरे, अब हम चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर मेरे वालिद के या किसी के रोजे बाकी हैं, तो शव्वाल में हम उनके तरफ से रोजा रखेंगे, ज़िक़ादा में हम उनके तरफ से रोजा रखेंगे। समझ में आ रही बात? समझे नहीं समझे मालूम? या नहीं तो उनके तरफ से हर रोजे के बदले में कितना? 1.5 किलो। हाँ अच्छा, कुछ लोग आसानी के लिए क्या करते हैं, मौलवी साहब 45 kg चावल का 50 रुपया किलो के एतबार से इतना पैसा हुआ, ले जा करके पैसा दे दिया, अदा होगा? बोलिए नहीं होगा, पैसा देने से नहीं होगा। क्योंकि वो लोग, जो लोग ज़कातुल फित्र में यानी फितरा में पैसा देने के कायल हैं, वो भी कहते हैं कि फिदिया में गल्ला ही देना पड़ेगा। और सही मसला यह है कि फितरा में गल्ला ही देना पड़ेगा, पैसा देने से फितरा अदा नहीं होगा। समझ गए मामला? आइए, ऐसी बीमारी जिसके ठीक होने की उम्मीद हो, यानी अभी बीमार पड़ा, मलेरिया हो गया रोजा में, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे बीमारियों से। अब बीमार पड़ गया बेचारा, क्या करेगा आप? तो जब रमजान खत्म हो जाए उसके बाद उसको क्या करेगा? कज़ा करेगा, उस रोजे की कज़ा करेगा, यानी दूसरे दिनों में वो रोजा देगा। अब कज़ा करने के अहकाम सुनिए। एक आदमी इस रमजान में बीमार पड़ गया, रोजा नहीं रखा,
अब वो कब रखेगा रोजा, कब रखेगा? आइंदा शाबान तक, यानी 2024 का रोजा छोड़ा है, 2025 के शाबान तक उसका लास्ट ड्यू डेट है, वो रोजा मुकम्मल करे। अगर नहीं किया फिर से रमजान आ गया और 2024 का रोजा बाकी है, 2025 का रमजान आ गया, माए बहनें भी इसको बहुत गौर से सुने, उनका रोजा भी बाकी रहता है इस तरह से। तो अब ऐसी सूरत में उसको क्या करना पड़ेगा, बगैर उज्र के अगर उसने छोड़ा है तो 2024 का छोड़ा हुआ रोजा अगर 2025 के रमजान के बाद रख रहा है तो ऐसी सूरत में रोजा भी रखना पड़ेगा और हर रोजे के बदले में उसको फिदिया भी देना पड़ेगा। समझ गए? लेट फीस, क्या? लेट फीस। चूंकि आप लोग अंग्रेजी में समझते हैं इसीलिए हम कहा लेट फीस। समझे नहीं समझे? यही फतवा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का, इमाम अहमद इब्न हंबल का और दिगर हजरत अबू हुरैरा का और दिगर सहाबा और ताबईन का है। लिहाजा आखिरी कब तक है? बोलिए, शाबान तक। और उससे जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको क्या करना पड़ेगा, कर देना चाहिए। क्योंकि उधार हम चाहते हैं ना जितना जल्दी हो सके अदा कर दें, चाहते हैं नहीं चाहते हैं? तो जब इंसानों का उधार हम जल्दी अदा करने की कोशिश करते हैं तो जो अल्लाह का उधार है उसको भी क्या करना चाहिए, जल्दी अदा कर दे। जिंदगी मौत का ठिकाना नहीं है, अगर मर गए वो रोजे हमारे ऊपर रखे रहेंगे, पता नहीं हमारे तरफ से कोई अदा करेगा नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला पूछेगा नहीं पूछेगा। इसीलिए पहली फुर्सत में। अच्छा, यहां लगे हाथों एक मसला और बता देते हैं। एक आदमी रमजान के रोजे रखा, लेकिन उसके माए बहनें भी इसको गौर से सुने, खवातीन, मिसाल के तौर पे उसके 5 रोजे छूट गए, रोजा रखा बीमारी की वजह से, या खवातीन की अपनी बीमारी की वजह से उसके 5 रोजे छूट गए। अब शव्वाल का रोजा रखना चाहता है, वो नफिल रोजा जो 6 रोजा रखता है तो उसकी बड़ी सवाब है, तो क्या पहले कजा अदा करेगा या पहले शव्वाल का रोजा रखेगा? क्या अदा करेगा? पहले कजा करेगा। और बगैर कजा अदा किए हुए अगर उसने रखा है तो वो सवाब उसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमजाना, जो रमजान के रोजे रखे, सुम्मा, उसके बाद, तो उसके बाद कब होगा? जब इसको मुकम्मल करेगा तब ना। तो रमजान या तो 29 दिन का होता है या 30 दिन का होता है। 29-30 की गिनती पूरी करके अब अगर शव्वाल में 6 दिन रोजा रखता है तो उसको शव्वाल का रोजा रखने का सवाब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसीलिए वो खवातीन जो शव्वाल का रोजा रखना चाहती हैं उनको चाहिए कि पहले रमजान के रोजे छूटे हुए उसको मुकम्मल कर लें, ईद के दूसरे दिन से रखना शुरू कर दें। अब मुकम्मल हो गया 6-7 रोजा, उसके बाद 6 रोजा कंटिन्यू शव्वाल के भी रख लें, कंटिन्यू रखें, 1 दिन छोड़ के रखें, 2 दिन छोड़ के रखें, कोई हरज की बात नहीं है। हो गई बात या नहीं? समझे नहीं समझे? अच्छा, अब आइए रोजे की कजा कैसे करेंगे? बीमार कैसे कजा करेगा, समझ गए आप? मुसाफिर कैसे कजा करेगा, यह आपको मालूम है। दूसरे दिनों में कजा करेगा। हैज व निफास वाली औरत ये क्या करेगी? ये भी कजा करेगी, बाद में रोजा रखेगी। हामिला और दूध पिलाने वाली औरत, इसका मसला है, इसको जरा गौर से समझिए। एक औरत है जो हामिला है, हमल से है, और या तो औरत दूध पिला रही है। दोनों सूरतों में, 2 हालतों से वो खाली नहीं है। एक हालत तो यह है कि औरत ये कहे कि मौलवी साहब अगर हम रोजा रखेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि औरत हालत हमल में वैसी कमजोर होती है, उल्टियों की वजह से और दूसरे मसाइल की वजह से, हर एक के अलग अलग मसाइल होते हैं। बोले मौलवी साहब नहीं होगा हमसे, रोजा नहीं रख सकते, कमजोर पड़ जाएंगे हम, दिक्कत हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे उसको? कहेंगे आप रोजा छोड़ दो, छूटे हुए रोजा आइंदा रख लेना। लेकिन खातून ये कह रही है कि मौलवी साहब रोजा हम रख लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा जो हमल है ना इसको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको परेशानी हो जाएगी, या वो बच्चा जिसको मैं दूध पिला रही हूं उस बच्चे के लिए दूध नहीं होगा, वो भूखा रह जाएगा,
अपने ऊपर खौफ नहीं खा रही है, वो अपने बच्चे के ऊपर खौफ खा रही है। तो अगर बच्चे के ऊपर खौफ खा करके रोजा छोड़ रही है तो बाद में उस रोजे की कज़ा भी करेगी और उसके बदले में, हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन को फिदिया भी देगी, क्योंकि ये जो छूट मिली है उसको उसके अपने वजह से नहीं मिली है, उसके साथ एक चीज जुड़ी हुई है जिसके वजह से मिली है। और ऐसी सूरत में फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का, अब्दुल्लाह इब्न मसूद का और दीगर सहाबा ताबीन का फतवा है कि वो खातून इस तरह से करेगी। अच्छा, यहां एक और मसला समझिए। एक खातून ऐसी है बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, अब हामला है, 1 साल के रोजे छूटे हालत हमल में, दूसरे साल दूध पिला रही है, 2 साल दूध पिलाएगी, कितने साल के रोजे छूट जाएंगे? कम से कम कितना रोजा छूटा है? 90 रोजे छूट गए उसके। अब वो कहेगी कि अब हम कहां से रखेंगे, हम नहीं सकेंगे, हम इतने कमजोर हैं, देखिए, और देख रहे हैं आपके वाकई कमजोर है, हड्डियों का ढांचा, नहीं सकेगी वो। तो उसको शरीयत आसानी देती है, कहेगी हर रोजे के बदले में फिदिया दे दो, तुम्हारी जान छूट जाएगी, खत्म हो जाए। लेकिन एक औरत ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया है, और वो कहेगी हम फिदिया देंगे तो बोलिए नहीं होगा, उसको रोजा रखना पड़ेगा। अब चाहे एक छोड़ के 2 दिन छोड़ के रखे, हफ्ते में 2 दिन कर ले, पीर और जुमरात रखे, और रखते 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 पूरा रोजा उसका इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। समझ गए ये पूरी बात? अब आइए, रोजा को तोड़ने वाली चीजें, वो चीजें जो रोजा को तोड़ देती हैं, जल्दी जल्दी समझिए इसको। जानबूझ करके खाना पीना, जानबूझ करके खाना पीना। अब एक आदमी क्या किया, कोई कंकर उठा करके खा लिया, या मोती लिए हुआ था, मुंह में डाला, अंदर चला गया, क्या होगा? क्या होगा? बोलिए भाई, हैं? अगर हलक से कोई चीज वो नीचे उतारा, चाहे मोती हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कुछ भी हो, उसका रोजा बाकी नहीं रहेगा, उसका रोजा टूट जाएगा। जानबूझ करके, यहां जानबूझ कर रहे हैं, ये गौर कीजिएगा। इसीलिए यहां पर बात आएगी फिर कि अगर अनजाने में, मिसाल के तौर पे हम लोग सबको पानी पीने की आदत होती है, शुरू दिन में जब रोजा रखता है आदमी भूल जाता है, नहीं याद है। हैदराबाद में एक मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, मुअज्जिन साहब ने गलती से मिंबर पे लाके पानी रख दिया, मुअज्जिन साहब रखते थे हमेशा, वो भी लाके रख दिए, और इमाम साहब खुतबा दिए, पीछे मुड़ा, देखा पानी रखा हुआ, उठा करके पी लिया। मस्जिद वालों ने हंगामा शुरू कर दिया, अरे आप रोजे से नहीं है। अरे भाई मैं रोजे से हूं, कई को पानी पिया, अरे भूल गया भाई, पी लिया, क्या हर्ज है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कोई आदमी अगर भूल चूक करके खा पी ले तो ऐसी सूरत में क्या है, उसका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे पता चला वैसे क्या करना है, उसको रुक जाना है। जैसे 1 गिलास पानी थी, पिया, ऐसे 2 घोंट पिया, और उसको पता चल गया कि हम रोजे से हैं, पूरी गिलास मुकम्मल करेगा है? बस क्या करेगा, 2 घोंट पी के जैसे याद आया वैसे ही छोड़ देगा, जैसे याद आया वैसे ही छोड़ देगा। अब यहां कुछ मसाइल हैं, बहुत मसाइल में तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन सुनिए। आप सोए हुए हैं, वालदा आकर के उठा रही है, उठो बाबू, कब तक सोए रहोगे, जोहर का वक्त हो गया, उठो, अब अजान हो जाएगी, उठो उठो, नहीं उठ रहा है। वालदा गई, 1 गिलास पानी लिया, मुंह में मारा छप से जगाने के लिए, अब वो पानी चला गया हलक से अंदर, क्या कीजिएगा? टूटेगा नहीं टूटेगा रोजा? बोलिए, हैं? नहीं टूटेगा रोजा, क्योंकि वो जानबूझ करके आपने नहीं किया। अच्छा, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, पेट्रोल डीजल आमतौर पे हम लोग खींचते हैं, बड़े गैलन से निकालते हैं, पाइप से ऐसा सक करके निकालते हैं, खींच रहा था, चला गया थोड़ा सा, टूटेगा नहीं टूटेगा? टूट जाएगा। इसीलिए कहा तुम जानबूझ करके क्यों खींचा मुंह से, तुमको मालूम था? हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम वजू करो खाली दिन में,
تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایسا پانی لیا, ایسا ناک میں ڈالتے ہیں اس طرح سے, ایسا. یہ نہیں ہے, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. پانی لے کر کے کھینچنا ایسے. استنشاق, استنشاق کہتے ہیں ہوا کے پریشر سے پانی کو اوپر چڑھانے کو, پانی اوپر چڑھانا ہے. اور استنثار کہتے ہیں ہوا کے پریشر سے پانی کو نیچے نکالنے کو, اس طرح سے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پانی آپ نے باہر نکالا. کا الا ان تکون صائما, سوائے اس کے کہ تو روزے سے ہے, تو روزے کی حالت میں پانی کو اوپر تک نہیں چڑھانا ہے. جب وضو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہہ دیا تو تم جان بوجھ کر کے پائپ سے کیوں کھینچ رہا تھا؟ اجتناب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو روزہ تمہارا کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سے سمجھیے مسئلے کو. ایک آدمی بائک چلا رہا ہے, چلا کے جا رہا ہے, دھول 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 پڑ رہے ہیں اس کو, پورے منہ میں حلق میں دھول چلا گیا. روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ بولیے. نہیں ٹوٹے گا اس کا روزہ. اسی طریقے سے ایک آدمی باورچی ہے, روزہ رکھ کے کھانا پکا رہا ہے, پورا مسالے کے اور اس کے خوشبو جا کر کے ایک دم لگ رہا ہے کہ پیٹ بھر گیا. باورچی, اس کا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ بھائی اس کا وہ جان بوجھ کے وہ کام نہیں کر رہا ہے, وہ اس کا کام ہے. اب ہوا اس کے ناک سے جا رہی ہے تو کیا سانس لینا بند کر دے؟ مر جائے گا کہ نہیں؟ ہاں. تو شریعت اس طرح. لیکن جان بوجھ کر کے آپ جا کر کے ڈیک کھول کر کے کر رہے ہیں, سونگ رہے ہیں, اس کا بھاپ لے رہے ہیں اندر, تو کیا ہوگا؟ احتیاط کرنا پڑے گا, ویسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے. نمبر 1. نمبر 2, جمع کرنا. رمضان میں صبح صادق سحری کھانے کے بعد سے لے کر کے روزہ کھولنے تک بیوی سے قریب ہونا کیا ہے؟ حرام ہے. قریب ہونا کا مطلب جو میاں بیوی کے خاص تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات قائم نہیں کرے گا. اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کر لیا وہ تعلق قائم, تو ایسی صورت میں کفارہ مغلظہ اس کو لگے گا. کفارہ مغلظہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے. غلام کا زمانہ تو نہیں رہا, تو کیا کرے گا؟ 60 دن کے لگاتار روزے رکھے گا. 60 دن لگاتار کنٹینیو. بیچ میں اگر جان بوجھ کے ایک دن بھی مس کیا تو پھر ایک سے شروع کرنا پڑے گا اس کو. یعنی 55 روزہ رکھ لیا تھا, ایک دن بھول گیا, تب پھر سے ایک سے شروع کرنا پڑے گا اس کو. یہ 55 روزے اس کے کیا ہوئے؟ کینسل ہو گئے. کتنی بڑی سزا ہے, غور کیجئے گا. اس سے اجتناب کرنا ہے, اس سے اجتناب کرنا ہے. بہت لوگ, خصوصاً جو لوگ نئے نئے شادی کیے ہوتے ہیں, وہ اس سے اجتناب اور احتیاط نہیں کر پاتے. ہمیشہ مسائل آتے ہیں اس طرح کے, آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. اور اس میں کیا کفارہ دونوں کو ہوگا؟ تو علماء کے صحیح قول کے مطابق میاں کو بھی کفارہ لگے گا, بیوی کو بھی کفارہ لگے گا, الا یہ کہ وہ مکرہہ ہو. مکرہہ مانے زبردستی اس کے ساتھ کی گئی ہو. لیکن عام طور پہ میاں بیوی کے معاملے میں زبردستی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے, دونوں کی رضامندی ہوتی ہے. اسی لیے شریعت کہتا ہے تم کو بھی کفارہ دینا پڑے گا اور تم کو بھی کفارہ دینا پڑے گا. دونوں نے اپنے روزے کو خراب کیا ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. نمبر 3, نوجوانوں خوب غور سے سنیے مسئلے کو. آج کل موبائل میں, جوال میں اسکرول کر رہے ہیں, کچھ پکچرز آ گئے, کچھ بری چیزیں آ گئی, نظر آ گئی. ایک دم صاف صاف بول رہا ہوں تاکہ صاف صاف سمجھیے مسئلے کو. اور اس کے بعد شہوت بیدار ہوئی, شہوت کو آپ نے خارج کر لیا کسی دوسرے طریقے سے, کوئی بھی ان نیچرل طریقہ استعمال کر کے آپ نے اپنی شہوت کر لی. ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. لیکن اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا, اور اس کی بہت بڑی سزا ہے, اس کی بہت بڑی سزا ہے. ہاں, کفارہ مغلظہ تو نہیں لگے گا, لیکن کیا ہوگا؟ اس روزے کی بہت بڑی سزا ہوگی, ورنہ اللہ سے توبہ استغفار کرنا پڑے گا اور روزہ, اس روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا پڑے گا. اسی لیے ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ اس جیسے چیزوں سے کیا کیجئے؟ اجتناب کیجئے. فیس بک, واٹس ایپ جتنا کم سے کم ہو سکے استعمال کیجئے, اور ان چیزوں کو کہ روزہ کے خراب کرنے کا ذریعہ نہ بنائیے. اور اس میں دونوں لوگ شامل ہیں. اچھی بات, اب یہاں سنیے. روزہ رکھے تھے, سوئے سحری کر کے, احتلام ہو گیا, پھر روزہ رہا یا نہیں رہا؟
बोलिए, रहेगा। मर्द और औरत दोनों के साथ मामला है, रोजा रहेगा, क्योंकि इसमें उसका कोई दखल नहीं है। वो उठे और गुस्ल कर ले, उसका रोजा अल्हम्दुलिल्लाह 100% कंप्लीट रहेगा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी एहतलाम नाइट फॉल, सोते में ख्वाब में इंसान कुछ देखा और उसका मनी खारिज हो गया, उसी को एहतलाम कहते हैं अरबी जबान के अंदर। और इसी तरीके से गर्मी का मौसम है, कोई भारी सामान उठाया, या गर्मी का मौसम है, गर्मी की वजह से पेशाब करने के लिए बैठे और बे इख्तियार वो खारिज हो गया मनी, तो ऐसी सूरत में भी रोजा नहीं टूटेगा। समझ में आ रही बात? रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, इख्तियारी तौर पे अगर आदमी उसको खारिज करता है तो ऐसी सूरत में उसका रोजा टूट जाएगा। और अगर जिमा के जरिए कर रहा है, बीवी से मुकारबत करके कर रहा है, तो कफ्फारा मुगल्लज़ा उसको देना पड़ेगा, जो कफ्फारा भी हम बतलाया कि या तो गुलाम आजाद करे, 60 दिन के लगातार रोजे रखे, या नहीं 60 दिन का रोजा रखने की ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीन को क्या करेगा? खाना खिलाएगा, ये उसका कफ्फारा है। अब उसके बाद आइए, ताकत वाले इंजेक्शन या सुई लगवाना। रोजा रखे हुए हैं, बोल रहे हैं जरा एक बी कॉम्प्लेक्स लगवा दो, जरा एक सलाइन चढ़ा दो, बोतल ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दो, उससे क्या होगा? रोजा टूट जाएगा, रोजा टूट जाएगा। लेकिन एंटीबायोटिक है, इंजेक्शन ले रहे हैं, तो रोजा टूटेगा कि बाकी रहेगा? बोलिए। उसकी दो कैफियत है। डॉक्टर अगर आपको ये कहे कि बहुत पावरफुल इंजेक्शन है भाई साहब, कुछ खाए पिए नहीं है, अगर दे दें चकरा के गिर जाइएगा, तो हम उसको कहेंगे कि ऐसा करें डॉक्टर साहब, इफ्तार करके आएंगे, उस वक्त तक रुक सकते हैं, कोई मसला हो जाएगा, मेरी बीमारी बढ़ जाएगी। कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आप आइए इफ्तार करके शाम में ले लीजिए, शाम में हम दे देंगे आपको इंजेक्शन। कहा ठीक है, तो हम शाम में आते हैं, नहीं लीजिए उस वक्त, रोज़ा अगर बचाना सकते हैं बचा लीजिए। डॉक्टर कहा नहीं नहीं नहीं, आपको डॉक्टर ने अभी लिखा है, ये डोज अभी ले लेना है, आपको ज़रूरी है, शाम तक बीमारी आपकी बढ़ जाएगी, मसला हो जाएगा आपके साथ। तो ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ दीजिए, इंजेक्शन ले लीजिए। वहाँ पे आएगी कुरान मजीद की आयत, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, अल्लाह ताला किसी को उसके ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं करता है। समझ में आई बात? हाँ, तो अब ताकत वाले इंजेक्शन के अलावा एंटीबायोटिक अगर हुए ले सकते हैं तो ले लीजिए। इसी तरह से वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन लग रहा था ना, का वैक्सीन अगर लगवा रहे हैं और डॉक्टर ये कह रहा है कि सेफ है, अब खाली पेट भी ले सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, ले लीजिए। इसी तरह से इंसुलिन रोजा रखे हुए हैं, हाँ, और देखा कि शुगर लेवल बढ़ गया, अब इंसुलिन लेना है चमड़े में, तो इंसुलिन का अगर इंजेक्शन लेता है कोई तो वो ताकत नहीं है, उससे कोई हरज की बात नहीं है, उसका रोजा बाकी रहेगा, रोजा नहीं टूटेगा। अब आइए खून निकालना, उसकी दो शक्ल, एक तो यह है कि एक यूनिट खून निकाल रहे हैं किसी को ब्लड देने के लिए, और दूसरा खून निकाल रहे हैं कैसे? टेस्ट कराने के लिए। और इसी में एक तीसरा खून लगा दीजिए, हिजामा कराना, पछना लगवाना, कपिंग करवाना। कपिंग कराने का जो मसला है वो उलमा बहुत मुख्तलिफ फिरा है, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि रोजा की हालत में न कराओ, शाम में कराओ, जब रोजा खोल लो उसके बाद जाकर के कराओ, जानबूझ करके इख्तिलाफ में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई आदमी अगर आया और कहा कि मौलाना हमको मालूम नहीं था, हमने कपिंग करवा ली रोजे की हालत में, तो हम कहेंगे तुम्हारा रोजा बाकी है, तुम्हारा रोजा बाकी है, टूटा नहीं है, लेकिन आइंदा मत करना, इफ्तार करने के बाद जाके करवा लेना, अच्छी बात है। खून निकालने की दो कैफियत, एक तो यूनिट ब्लड निकाल रहे हैं, तो उलमा कहते हैं कि अगर ज्यादा खून निकल रहा है तो उससे रोजा टूट जाएगा, ज्यादा खून निकल रहा है तो रोजा टूट जाएगा। तो हम कहेंगे कि हम नहीं देंगे, कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो रोजा नहीं रख रहा है, मिसाल के तौर पर कोई खातून है जो रोजे से नहीं है, अपने उज्र के बुनियाद पर, तो उसको कहेंगे तुम दे दो, या हम कहेंगे इफ्तार तक रुको मियां, उस वक्त जाकर के हम दे देंगे। वो कहे नहीं अर्जेंट है, मेरा ही खून चाहिए, मरीज नहीं तो दिक्कत में पड़ जाएगा, तो ऐसी सूरत में खा पी करके ब्लड आप दे सकते हैं, इसकी कज़ा बाद में कीजिएगा। डॉक्टर कहा कि तुमको टेस्ट कराना है ब्लड, ऐसी सूरत में आप गए उसके पास, टेस्ट कराने वाले के पास,
अब उससे कहिए कि हम मगरिब के बाद आएंगे, होगा चलेगा? कहे नहीं नहीं नहीं, अभी निकालना है, क्योंकि अभी से तुम्हारा इलाज शुरू होगा, दोपहर तक रिपोर्ट आ जाएगी, जरूरी है। तो फिर कहिए कि लो, ले लो, निकाल लो, रोजा नहीं टूटेगा इंशाल्लाह, अगर थोड़ा सा खून निकालता है तो। और अगर कहता है कि नहीं इफ्तार के बाद हम निकालेंगे, हो जाएगा, तो कहिए ठीक है, हम इफ्तार के बाद आकर के आपको ब्लड दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इख्तिलाफ में पड़ने की वजह से ये खून निकालना, जानबूझ करके कय करना, जानबूझ करके कय करना, उसकी कई सूरत है। एक सूरत तो यह है कि आपने उंगली डाल करके कय कर ली, खाना निकाल दिया, रोजा क्या होगा? टूट जाएगा। अच्छा, एक आदमी को मालूम है कि हम खून देखते हैं तो हमको उल्टी होती है, बैठा हुआ था दुकान में काम कर रहा था, सड़क में एक्सीडेंट हो गया, दौड़ के चला गया देखने के लिए, और जैसे खून देखा उल्टी कर दिया, उसका रोजा रहेगा नहीं रहेगा? हैं? रहेगा नहीं रहेगा? उसका रोजा टूट जाएगा। भाई तुमको मालूम था खून देखने से उल्टी हुआ है, तुम क्यों गया? जानबूझ करके तोड़ा तुमने रोजा, रोजा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अच्छा, एक आदमी को मालूम है कि हम ये फला चीज खाते हैं तो हमको गैस बनता है, उल्टी होती है, और शहरी में दावत में गया, वही चीज मिली थी, खा लिया खूब, और फजर के बाद हो गई उल्टी, क्या होगा? टूट जाएगा। कहेंगे तुमको जब पता था कि ये खाने से तुम्हारी तबीयत तुमको कबूल नहीं करती है, तुम क्यों खाया जानबूझ करके? तो ये भी जानबूझ करके कय करने में हुआ। लोग समझते हैं कि हम सिर्फ उंगली डाल के नहीं ना कय किए हैं, तो ये सब भी जानबूझ करके ही आएगा। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसे ही है, कोई काम उसने नहीं किया है, फिर भी उसको कय आ गया, तो इंशाअल्लाह उसका रोजा नहीं टूटेगा, उसका रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह से हैज़ो निफास का आना, हैज़ो निफास आ गया अगर तो रोजा टूट जाएगा। इस मसले को जरा गौर से समझिए। एक खातून है, गौर से समझिए जी, खातून है, इफ्तार में बैठी हुई है, इफ्तार में बैठी हुई है, हाथ में खजूर ली हुई है, अभी अजान होने के लिए 1 मिनट बाकी है, और हैज आ गया उसको। ऐसी सूरत में उसका रोजा होगा नहीं होगा? 1 मिनट की बात है, होगा नहीं होगा? बोलिए भाई। नहीं होगा, उस दिन का रोजा नहीं होगा, रखना पड़ेगा उसको रोजा फिर। ठीक है, समझ गया मसला? हाँ ठीक। इसी तरीके से एक औरत है, सहरी का वक्त हो गया, मिसाल के तौर पे 4:50 पे आखिरी सहरी है, 4:52 पे उसको पता चला कि अब तो मैं पाक हो गई हूं, तो क्या करेगी? उस दिन का रोजा रखेगी या नहीं रखेगी? रखेगी या नहीं रखेगी? बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं रखेगी। जैसे यहां इसको ग्रेस नहीं मिला, वैसी वहां उसको नहीं मिलेगा। अलगुन्मो बिलगुर्मे, अगर उसको नुकसान हुआ है तो फायदा भी उसी को होगा। उस दिन का रोजा चूंकि सहरी का वक्त निकल गया था, अब उसको रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 1 मिनट के लिए उसके दिन भर की मेहनत चली गई थी, तो उसको रोजा रखना पड़ा था। आई बात समझ में कि नहीं आई जी? अब इस दरमियान में कुछ औरतों के अंदर यह भरम है। क्या है भरम? कि हम रोजा छोड़ तो रहे हैं, लेकिन दिन में हम खाए पिएंगे नहीं एहतरामन रोजे के। इसकी कोई दलील नहीं है, इसकी कोई दलील नहीं है। आप रोजा नहीं रख रहे हैं तो एहतरामन फिर क्या होता है? क्या होता है एहतरामन? इसीलिए हमारी माएं बहनें वो बेचारी क्या करती हैं? नहीं खाती हैं, रोजा छोड़ भी रही है। अब एक तो कंबाइंड फैमिली हम लोगों की होती है, तो उसका भी शर्म हया का भी मामला होता है उनके साथ। शहरी में वो उठती भी हैं, सबके साथ शहरी भी करती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर चाहें दिन में 10 बजे 11 बजे, हाँ चलिए, शर्म हया अच्छी चीज है, छुप करके कुछ करके घर में खा सकती हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। अब एहतरामन आप दिन भर रुके हुए हैं तो ये एहतराम की कोई वजह नहीं है। हाँ, छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको दिखा करके खा रहे हैं तो सबको हल्ला कर देगा मोहल्ले में, कहने लगेगा कि मेरी माँ खा रही थी, मेरी बहन खा रही थी, फला मेरे अब्बा खा रहे थे, तो ये बात अच्छी नहीं होगी। इसीलिए उन लोगों से बचते बचाते आदमी को काम इस तरह से खाना पीने का कर लेना चाहिए। समझ गए बात को?
अब उसके बाद कुछ चीजें थोड़ी सी बाकी रह गई हैं, मुकम्मल कर दें, करें या छोड़ दें? रोजा में मुबाह चीजें, वो कौन सी चीजें जो रोजा में जायज है? नंबर 1, थूक निगलना। थूक है ना, उसको निगलना। कुछ लोग क्या करते हैं, ये कुल्ली किया, कुल्ली करने के बाद थू 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 करते करते जब तक वो पूरे मुंह को सुखा न ले तब तक वो छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, शरीयत ऐसा नहीं है। आपने कुल्ली किया है तो कुछ ना कुछ आपके मुंह में पानी का हिस्सा बाकी है, एक मर्तबा थूक दिया, निकल गया, अब बार बार उसको थू थू करने की जरूरत नहीं है। बात कर रहे हैं थूक है तो बहुत सारे लोग उठ उठ करके थूकने के लिए जाते हैं, वो भी कोई हरज नहीं है। रोजे में अगर थूक आदमी निगलता है अपनी तो मुबाह है। हाजत के वक्त खाना चखना, खातून है या कोई बावर्ची है, खाना बना रहे हैं, वो हाजत के वक्त जरा सा चख लिया कि नमक है कि नहीं है, जबान पे रख करके उसके बाद थूक दिया उसको, है ना, तो कर सकते हैं। लेकिन ये हाजत के वक्त, जरूरत के वक्त। अब कोई भी चीज आप बना रहे हैं, डिश बना रहे हैं, कोई हाजत नहीं है। औरतें खास तौर पे रमजान में दिन भर यूट्यूब देखती हैं, आज नया कौन सा डिश आया, आज उसको बना करके खिलाएंगे, समझे? तो रमजान को हमने लोगों ने खाना पीने का महीना बना दिया, और दिन भर जो हम लोग भूखे रहते हैं ना, उसका इंतकाम लेते हैं इफ्तारी में। इतना खा लेते हैं कि इमाम की किरत कम सुनाई देती है, लोगों की डकार ज्यादा सुनाई देती है मस्जिद में। और उसके बाद फिर तरावी में खड़े नहीं रह सकते। जब ज्यादा खा लेगा आदमी तो इबादत कहां से कर सकेगा? फिर होता यह है वही खाने पीने के चक्कर में 15 दिन के बाद मस्जिदें खाली हो जाती हैं, और उसके बाद शॉपिंग मॉल्स ये सब आबाद हो जाती हैं। मुसलमानों को देखिए, इफ्तार किया निकल गए, जिसको 4 व्हीलर है 4 व्हीलर में, जिसको 2 व्हीलर है 2 व्हीलर में। तरावी छोड़ दीजिए। क्या रोजा इसीलिए आया है भाई, है कि शॉपिंग करो? सब काम अभी करके खत्म कर लीजिए, कल एक दिन है, और रमजान को इबादतों में गुजारिए। खाना पीना कम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आदमी को जिंदा रहने के लिए 2-4 लुकमे काफी हैं, छोटे छोटे लुकमे, लुकैमात कहा, युकिमना बिही सुलबहू, जिससे उसकी पीठ सीधी रहे। हम लोग जब तक यहां तक नहीं खा लेते, हम लोगों की हाजत पूरी नहीं होती, और यही वजह है कि मोटापे के शिकार होते हैं। फिर न इबादत सही से कर सकते हैं, फिर घुटने में दर्द, फिर कमर में दर्द, फिर और चीजों में दर्द। जो इस्लामी तरीका था आज गैर मुस्लिम उसको अपना रहा है। किसी भी सेलिब्रिटी को आप देखिए, दिन भर में 2 टाइम का खाना खाता है, 1 टाइम का स्किप कर देता है, नहीं खाता है, फिट रहने के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि 2 बजे के बाद, दोपहर के 2 बजे के बाद उनका किचन फंक्शनल नहीं रहता, बंद हो जाता है। फिर अगर कुछ खाने की जरूरत पड़ी तो एक आध सेब ले लिया, कुछ और फल ले लिया, कुछ ले लिया, कुछ खजूर ले लिया, बस हो गया। हम लोगों का क्या है, एहतिमाम के साथ सुबह भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, फिर 4 बजे असर बाद नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद रात के 10 बजे भी खाते हैं। इतना खाना नहीं चाहिए भाई। शरीयत, कभी मौका मिला तो फिकुल अतिमा, शरीयत में खाने पीने के क्या निजाम है उसको पढ़ाऊंगा, तब आप देखिएगा डाइटिशियन क्या बताएगा आपको, या ये डॉक्टर आपको क्या बताएंगे परहेज, जो किताब सुन्नत में आपको बताया गया है, हमको मालूम नहीं है भाई। 3 लुकमा से खाने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, 3 उंगली से। अब चावल 3 उंगली से उठाइए तो कितना उठेगा? जाहिर है उठाते 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 आदमी थक के छोड़ देगा, जा कितना खाएंगे। हमारा उठता है कैसे, ये उठता है, उसमें साइंटिफिक रीजन है, ऐसे ही नहीं है मामला। यहां अगर डॉक्टर मौजूद है तो सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं दिमाग और पेट का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यह हदीस की बात है बता रहा हूं, जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और एक लाइफ पीरियड है मुतय्यन, एक पीरियड है मुतय्यन। आप मिसाल के तौर पे 10 मिनट का वो वक्त है, 10 मिनट में पेट दिमाग को सिग्नल दे देता है कि अब हमको नहीं चाहिए, बस। अब 10 मिनट में आप इतना बड़ा बड़ा लुकमा डाल देंगे तो जाहिर है सिग्नल थोड़ी देगा, नहीं देगा। छोटे छोटे लुकमे आप डाल रहे हैं, अभी पेट के किसी कोने में लुकमे पड़े हैं, तब तक ये कह देगा बस करो बस करो, अब हो गया काम खत्म, रोक दो।
तो अब खाना क्या होगा, खाने की तबीयत खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग करते क्या है, पूरा खा लेते हैं। अच्छा, खाना खाने के बाद सुस्ती आती है कि नहीं आती है? सोने का मन करता है कि नहीं करता है? क्यों करता है बोलिए, क्यों करता है? इसलिए करता है कि जो खाना हम लोगों ने पेट में खा लिया ना, तो ये मैदा सिग्नल देता है दिमाग को, क्या कि अब खून को तुमको जरूरत नहीं है, खून मेरे तरफ सप्लाई करो, इधर इधर भेजो, मुझे वर्क है। लिहाजा खून का सप्लाई दिमाग में कम हो जाता है, मैदे में ज्यादा हो जाता है, सुस्ती आनी शुरू हो जाती है, झुकता है आदमी। नमाज पढ़ रहा है, तरावी में सब झुक रहा, कोई सजदा में है तो सजदे में है, कोई है तो है। काहे वैसे कर रहे हो इबादत भाई, काहे वैसे इबादत कर रहे हो? कोई फायदा है उसका? कम खाओ भाई, कम खाओ। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है। कुछ लोग जिसको नोबेल इनाम मिला, जिसने ये रिसर्च किया कि आदमी को अगर कैंसर से बचना है तो उसको साल भर में 23 दिन 12 घंटा भूखे रहना चाहिए लगातार। अल्लाह अकबर, हमारी शरीयत कितनी साइंटिफिक है, आप अंदाजा लगाइए। तो 23 दिन का, पूरा 30 दिन भी नहीं कहा, क्योंकि औरतों का बसा औकात क्या होगा, छूट जाएगा 7 दिन, आमतौर पे छूटता है 23 दिन। हम लोग भूखे तो रहते हैं, लेकिन पूरे भूख रहने का इंतकाम शाम के वक्त दस्तरखान पे बैठ करके ले लेते हैं। इतना दस्तरखान लगाते हैं कि बैठने के लिए जगह कम पड़ जाती है, पता नहीं हम कहां बैठे हैं। अब दस्तरखान इतना फिर तो वो क्या काम होगा? दिन भर जो इसको भूखे रखा था, पेट कहता है यार तू खा लेता, इस वक्त क्यों थका रहे हो मुझको? फिर अभी खाया इफ्तार में, फिर 2-3 घंटा छोड़ करके फिर रात का खाना खा लिया, फिर अभी वो हजम हुआ कि नहीं हुआ, फिर सेहरी डाल ली है उसके ऊपर। दिन भर वो बेचारे को चैन क्या मिलेगा, और वो तकलीफ में पड़ जाता, बोलता तू खा लेता दिन भर तो वो ज्यादा बेहतर था। और उसके बाद रोजा रखे हैं तो काम भी कम करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, तरीके से रोजा रखनी चाहिए। हाजत के वक्त खाना चखना, उसके बाद ये गुस्ल करना मुबाह है, जिस वक्त चाहे आप उस वक्त गुस्ल कर सकते हैं। मिसवाक करना मुबाह है रोजे की हालत में। कुछ लोग कहते हैं, खुसूसन इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब ये फतवा है, कहते हैं कि जोहर के नमाज के बाद मिसवाक नहीं करना चाहिए। कहते हैं दलील क्या है उसकी? तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार के मुंह की बदबू या अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा महबूब है। तो अल्लाह के महबूब चीज को क्यों खत्म कर रहे हो? आने दो, आने दो। क्या कहिएगा, लॉजिक है? बोलिए भाई, लॉजिक है? नहीं है। रोजेदार के मुंह से जो बदबू आती है उसका ताल्लुक उसके दांतों से या मुंह से नहीं है, उसका ताल्लुक उसके पेट से है। पेट जो खाली रहता है ना, उसके वजह से बदबू आती है। आप चाहे जितना मिसवाक कर लें, वो जो बदबू है वो खत्म नहीं होगी। इसलिए आप मिसवाक जब चाहे तब कीजिए, कसरत से मिसवाक कीजिए, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। टूथपेस्ट के साथ ब्रश करने को कुछ उलमा जायज़ करते हैं, लेकिन हमारी तहकीक के मुताबिक जो मेरी नाकिस राय है ये दुरुस्त नहीं है, उससे इज्तनाब करना चाहिए। क्योंकि उसमें भाई नमक भी होता है, उसमें शुगर भी होता है, चीनी भी होता है, और उसको मुंह में लगा के धोने के बाद उसकी जो चीज़ें हैं बहुत देर तक बाकी रहती हैं, और उसको आदमी हलक से नीचे भी उतार लेता है। इसलिए उससे इज्तनाब करनी चाहिए। अब कोई कहेगा कि दातवन में मिसवाक में भी तो टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट नेचुरल होता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चीज़ साबित है, जबकि ये चीज़ साबित नहीं है। और इबादतों में क़ियास नहीं कर सकते, क़ियास नहीं कर सकते। खुशबू लगाना, रोज़े की हालत में खुशबू लगा सकते, खुशबू सूंघ सकते, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। ठंडक हासिल करना, एसी में बैठ सकते, या एसी नहीं है तो कपड़ा भिगा करके सर के ऊपर रख सकते, मुंह पोंछ सकते, बार बार कुल्ली कर सकते, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन हलक से नीचे नहीं जाना चाहिए। चलने दें कि रोक दें? हैं? रोजा के मुस्तहब चीजें कौन कौन सी चीजें, फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पढ़ लीजिए भाई पूरी चीज। सेहरी खाना नंबर 1 रोजा में मुस्तहब चीज है, सेहरी खाना। अब कुछ लोग हम लोग क्या करते हैं कि खूब घूमते फिरते आए, देखा कि रात का अब 1 बज गया है, अब खा लेते हैं फिर सो जाते हैं। फजर को पढ़ने की फिक्र किसको है? क्या वो सहरी होगा? नहीं होगा। सहरी का मतलब यह है कि सहर के वक्त में हो,
सुबह के वक्त में हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे रोजे और अहले किताब के रोजों के दरमियान जो फर्क है ना, सहरी खाने का है। वो लोग सहरी नहीं खाते हैं, तुम लोग सहरी खाओ। और आपने कहा तसहरू, सहरी करो, फ़इन्न फ़ी सुहूर बरका, इसलिए कि सहरी करने में क्या है, बरकत है। नंबर 2, ताखीर से सहरी करना, ताखीर से सहरी करना। कुछ लोग 3 बजे कर लेते हैं, कुछ लोग आधा घंटा पहले कर लेते हैं। नहीं भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहरी खत्म करने और फजर के जमात के खड़े होने में 52 मिनट का 52 आयतों के पढ़ने का फासला होता था। 52 आयतों को अगर आप जोड़िएगा तो तकरीबन 12 से लेकर के 13 मिनट लगता है। 12 से 13 मिनट में फजर की 2 रकत सुन्नत भी पढ़नी है, अजान भी होनी है और जमात खड़ी हो जानी है। अच्छी बात है। सहरी के कुछ मसाइल को समझिए। हम लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, खाना उना खा लिया, चावल दाल जो खाना खा लिया, उसके बाद 1 गिलास पानी ऐसे भर के रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं ऐसे कुर्सी पे आराम से। मुअज्जिन साहब शुरू, अल्लाहु अकबर, फट से उठाया पानी और उसके बाद पी लिया। उसका रोजा होगा? होगा नहीं होगा? बोलिए। हैं? नहीं होगा, नहीं होगा रोजा, जान लीजिए, नहीं होगा रोजा, नहीं होगा। दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लीजिए। कहते हैं जब अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अजान दे दें तो तुम खाने पीने से रुक जाओ, खाने पीने से रुक जाओ। क्यों? इसलिए कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम फजर की अजान देते थे। और फजर की अजान कब दी जाती है? जब फजर का वक्त हो जाए। फजर के वक्त से पहले अगर मुअज्जिन अजान दे देगा तो वो फजर की अजान नहीं होगी। समझ रहे हैं मसला? समझिए। इसीलिए जो पानी लेकर के बैठा हुआ है अजान देने के बाद जानबूझ करके पी रहा है, उसका रोजा नहीं होगा उस दिन का, उस दिन का नहीं होगा। यानी आपको सहरी अजान देने से पहले पहले तक कंप्लीट कर लेनी है। समझे बात को या नहीं समझे? हाँ। तब रहा कि आप बैठ के खा रहे थे, ऐसा लुकमा बना लिया था, ऐसे लेकर गए, अल्लाहु अकबर, क्या करेंगे? गिरा देंगे? हाँ, शरीयत कहती है नहीं नहीं गिरा, उठा लियो ना, नफ्स को मत मारो, ले जाओ, खा लो इसको, चबा के इसको पार कर लो। या मुंह में रखे हुए हो, थूक देंगे? नहीं थूकेंगे, कहा इसको निगल जाओ। लेकिन अब फ्रेश लुकमा बना करके नहीं डाल सकते। कुछ लोग कहते हैं कि प्लेट शुरू कर दिया ना मौलवी साहब, अनाज जाए हो जाएगा, इसको मुकम्मल कर देते हैं। तो जाए करने का अभी ख्याल आया, पहले से क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उठे पहले से सहरी करने के लिए? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? इसीलिए ये मसला जानिएगा। कुछ लोग दूध लेके बैठते हैं, पी रहे हैं, फूक फूक के अजान हो गई, अजान बोला अजान खत्म होने तक है। ए भाई, खत्म होने तक टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर जैसे हुआ कहानी खत्म। अब रुक जाना है, खाना पीना कुछ भी नहीं करना है, हटा देना है सब चीज। इसको याद रखिएगा। आमतौर पर इसमें गलती करते हैं लोग। इफ्तार करने में जल्दी करना कब? जब वक्त हो जाए तब, वक्त होने से पहले नहीं, वक्त होने से पहले नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे तो देखा कि कुछ लोगों को मार पड़ रही है बहुत जोर जोर से, और रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो टाइम होने से पहले इफ्तारी कर लेते थे। सूरज गुरूब होने से पहले क्या करते थे? इफ्तारी कर लेते थे। इसीलिए सूरज गुरूब होने के बाद ही इफ्तारी करना है, उससे पहले नहीं करना है। तर खजूर से इफ्तारी करना है, गीला खजूर से। रोजे में कसरत से दुआ करना है, हर वक्त दुआ में लगे रहिए, कसरत से दुआ कीजिए, सदका व खैरात कीजिए, नफिल नमाजें पढ़िए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। कोई अगर झगड़ा करे आपसे तो कहिए मैं रोजे से हूं। कोई झगड़ा करे तो कहिए रोजे से हूं। इसकी 2 शक्ल है। फर्ज रोजा रखे हुए हैं, झगड़ा कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। हमारे अक्सर झगड़े जो होते हैं ना, रमजान में होते हैं और मस्जिद में होते हैं। कसम अल्लाह की, इस उम्मत का बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। देखिएगा, छोटे छोटे मसाइल पे लेकर के
مسجد میں لوگ لڑتے ہیں اور آوازوں کو بلند کرتے ہیں، آوازوں کو بلند کرتے ہیں. ایک تو مسجد ہے، سلف صالحین رمضان میں کاروبار بند کر دیتے تھے، سنیے، اور آ کے مسجد میں بیٹھتے تھے. کہتے تھے کیوں مسجد میں بیٹھتے ہو؟ تو کہتے تھے روزہ کی حفاظت کر رہے ہیں، یہاں بیٹھے رہیں گے تو روزے کی حفاظت ہوگی، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں کہیں گے. اور دکان جا کے بیٹھیں گے، بیٹھک میں بیٹھیں گے، کہیں اور بیٹھیں گے تو کئی اس کی غیبت کر دیا، اس کی چغلی کر دیا، اس کے بارے میں کہہ دیا، جھوٹ بول دیا، یہ سب کریں گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں اگر لیٹے بھی ہوئے ہیں، آئے، ایک تو بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ کمر کسی کے پاس نہیں ہے، جوان بھی ہے تو، اور اس کے بعد لیٹ کر کے موبائل دیکھ رہا، آرام سے چلا رہا، فیس بک چلا رہا، یہ چلا رہا. اب تو نوجوانوں کی حالت یہ ہے، اللہ رحم کرے، اسی زمانے میں IPL ICL ان کی میچیں ہوتی ہیں، تراویح پڑھ رہا ہے، ہم نے دیکھا، آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اسکور کیا ہے پوچھتا ہے، کتنا ہوا، کوہلی گیا، وہ بچا ہوا ہے، بولنگ کون ہے، اس کا کتنا وکٹ ہوا. اس درمیان میں جس وقت جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. رے بے وقوف، رے بد نصیب ابھاگا، تم سے بڑا ظالم اور کون ہوگا بتائیے تو. ہے فرشتے موجود ہیں کہ تو جہنم سے پناہ مانگ لے، ہم اللہ سے سفارش کریں گے، تمہاری بات کریں گے. اللہ اکبر. روزہ اور یہ نماز لوگ مزاروں میں جا کے سفارشی ڈھونڈتے ہیں، یہ سفارش کریں گے کل اللہ کے سامنے، اور اس کو ہم اس طرح سے ضائع کر رہے ہیں، کرکٹ پوچھ کر کے، وکٹ پوچھ کر کے. رونے کی بات ہے کہ ہنسنے کی بات ہے؟ بولیے بھائی، ہے رونے کا مقام ہے، یہ رونے کا. کیا مرد کیا عورت سب اس میں مصروف ہے. اور شیطانوں کو، شرکش شیطانوں کو اللہ نے تو قید کر دیا ہے، لیکن کچھ شیاطین انس موجود ہیں. رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ ٹی وی پہ پروگرام ہوتے ہیں، نوٹنکی کا کھیل ہوتا ہے، دو چار ٹھو کو بیٹھا لیا گیا اور یہ بتاؤ وہ بتاؤ، یہ افطاری میں آج یہ بناؤ، آج فلاں میں یہ بناؤ، فلاں میں یہ بناؤ. سب خاتون اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ ثواب ہے. رمضان میں قرآن پڑھو ثواب ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کرو یہ ثواب ہے، کہ ٹی وی دیکھنے میں ثواب ہے، یوٹیوب دیکھنے میں ثواب ہے؟ بولیے بھائی. عبادت کو اگر عبادت کے طریقے سے انجام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ روزے دار ایسے ہیں جس کو روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ، بھوک مرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. کہیں ان لوگوں میں ہمارا شمار تو نہیں ہے؟ ہم کو سوچنا چاہیے، ان لوگوں میں کہیں ہمارا شمار تو نہیں ہے. روزہ صرف پیٹ کا روزہ یا منہ کا روزہ نہیں ہے، روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، منہ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے. نبی نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا، جس نے غلط بات بولنا، جس نے جاہلیت کے کام کرنا روزے کی حالت میں نہیں چھوڑا، اس کے روزے کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا روزہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے ہی نہیں. اس کے بعد ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور کاروباری لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جو کاروباری لوگ ہیں چاہتے ہیں مسجد میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انگارہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. امام صاحب ذرا سے لیٹ کر دیا تو اس کو گاڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یار اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. کام ہے ہم لوگوں کو، دکان کھولنا ہے، کسٹمر کھڑا ہے. ارے یار تم 1 مہینہ روزہ میں بند رکھو بھائی، کاروبار چھوڑ دو. یہ مغفرت کا مہینہ ہے. محدثین جو سال بھر حدیثیں پڑھاتے تھے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مسجد نبوی میں حدیث پڑھانا بند کر دیتے تھے. شاگرد دور دور سے آتے تھے، پوچھتے تھے امام صاحب حدیث، قرآن یہ قرآن کا زمانہ ہے، قرآن پڑھیں گے بتائیے تو. حدیث وہ چھوڑ دیتے تھے. ہم سے فیس بک نہیں چھوٹتا ہے، ہم سے IPL نہیں چھوٹتا ہے، ہم سے کرکٹ نہیں چھوٹتا ہے. ہم کیسے روزدار ہیں بھائی؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ غور کیا کبھی؟ سوچا ہے کیسے ہیں ہم لوگ مسلمان؟ ایسے بھوک مرنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. ہم ان حدیث کے وعید کے اندر شامل ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں. کوئی اگر آپ سے لڑائی کرے تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں. وہ اگر گالی دے رہا ہے آپ گالی مت دیجئے، چپ ہو جائیے، دینے دو گالی. برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کو چھیڑ رہا ہے، غصے دلانے کی کوشش کر رہا ہے، مت دیکھیے اس کی طرف. اپنے دل میں کہیے انی صائم،
इन्नी साइम, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं, तब भी नहीं मान रहा है, उसके मुंह पर कह दीजिए इन्नी साइम। उलमा कहते हैं ये कब कहना है? फर्ज रोजे में कहना है। और जब नफिल रोजा आप रखे हुए हैं और कोई आपसे झगड़ा कर रहा है तो अपने आप अपने दिल में कहिए इन्नी साइम, इन्नी साइम। अपने आप को समझाइए मैं रोजे से हूं। वो जाहिल है, उसको छोड़ दो, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। समझ में आ रही बात? इसलिए कि अगर उसको जोर से कह दीजिएगा मैं रोजे से हूं तो हो सकता है रियाकारी का खतरा हो। इसीलिए नफिल रोजे में दिल से कहना है, दिल में कहना है। और फर्ज रोजा रख रहे हैं तो उसके मुंह पर कहना है। सबको मालूम है कि रोजा रखे हुए हैं। रोजा में उम्रा करना यह भी मुस्तहब है। आखिरी अशरे में इतिकाफ करना, शबे कदर की जुस्तजू करना, शबे कदर की जुस्तजू करना, यह भी रोजा में। अब आइए रोजा में मकरूह चीज, जल्दी जल्दी निकलते हैं। कुल्ली और नाक में पानी डालने में मुबालगा नहीं करना, अभी बताया ना। रोजे की हालत में उसे खींचना नहीं है। बिला हाजत खाना नहीं चखना। खवातीन भी, अगर शौहर सब बर्दाश्त कर लेते हैं, नरम गरम, हाँ, और बर्दाश्त कर लेना चाहिए भाई। आसमान सर पे नहीं उठाना चाहिए किसी दिन नमक या मिर्ची ज्यादा हो गया तो। कुछ लोगों की तबीयत होती है, वो गलतियां ढूंढते हैं खवातीन की और चढ़ जाते हैं उनके ऊपर। हरगिज नहीं, ऐसा मत कीजिए। हो गई गलती, अब उस डर से कि शौहर नाराज हो जाएंगे, वो बेचारी चख रही है रोजा रख करके भी। कोई चीज पकौड़ी बना रही है तो चख रही है, सालन बना रही है तो चख रही है। अगर रोजा में गलती हो गया, कुछ हो गया, नजरअंदाज कीजिए। वो भी तो रोजे से है, जो तकलीफ आपको है उसको भी तो है, बल्कि उसको आजाद कीजिए। जरा छोड़िए, कहिए कि बावर्ची खाने में ज्यादा वक्त न लगाओ, मुसल्ले पे बैठो, इबादत करो, यहां लगाओ। जो खा लेंगे हो सकता है कुछ ले आएंगे खरीद से, बाजार से, इफ्तार कर लेंगे, लेकिन इबादत करो। इबादत में खलल मत डालो, ये फायदा होगा। वो जितना इबादत करेगी उसका सवाब आपको भी मिलेगा। बाकी अय्याम में हम लोग होटल से लाते हैं और आराम देते हैं घर वाले को। रमजान में क्यों तंग करते हैं उनको? सुबह से उठ करके बेचारी आज क्या बनाना है उसको मैरिनेट कर रही है, उसको ये करके फ्रीज में रख रही है, बच्चों के लिए खाना बना रही है। जो बच्चे छोटे बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, फिर घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, रोजा नहीं रख रहे हैं, उनके लिए दोपहर का खाना बना रही है। हाँ, फिर आपके लिए इफ्तारी बना रही है। कितने एहसानात हैं उसके, आप सोचिए तो। हम लोग तो सहरी करके सो गए, वो सुबह 8 बजे 9 बजे उठ करके बर्तन धो रही है, उसको सजा के संवार करके रख रही है, चूल्हा साफ कर रही है, घर में झाड़ू लगा रही है, फला कर रही है। एहसानात है या नहीं है? बोलिए भाई। हाँ, आप जुल्म नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए। अब कोई डिश नहीं बना, आज लस्सी क्यों नहीं बनाया? तुम क्या करती हो दिन भर? ये काम, एक काम तुमसे नहीं हो सकता। छाछ नहीं रखा, रूह अफ़ज़ा नहीं रखा, तो उसमें शक्कर कम है, तो उसमें नमक ज्यादा है। मत कीजिए भाई, मत कीजिए, नहीं कीजिए। आप रोजे से हैं, वो भी रोजे से है। अल्लाह के बंदियों के ऊपर रहम कीजिए। उसके बाद आइए, रोजा में हराम चीजें क्या क्या हैं। नंबर 1, बलगम निगलना। खखारा आया ना, ये खखारा निगलना क्या है? हराम है। लेकिन कोई आदमी निगल गया तो बोलिए, रोजा टूट जाएगा क्या? नहीं टूटेगा, रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से बीवी का बोसा लेना, यह भी क्या है? हराम है। इसलिए कि हो सकता है फिर उसके बाद आगे बढ़ जाए वो, इसलिए इज्तिनाब करना चाहिए। झूठ बोलना खाली दिन में भी हराम है, रोजे में ताकीदी तौर पर हराम है। जहालत का मुजाहिरा करना, लड़ाई झगड़ा करना, यह भी हराम है। अब आइए, विसाल करना रोजे में। विसाल किसको कहते हैं? जैसे आज रोजा रखा, आज सहरी किया, कल दिन भर रोजे रहे, फिर इफ्तार नहीं किया, रात भर भी रोजे रहे, फिर दूसरे दिन भी रोजे रहे और दूसरे दिन जाकर के इफ्तार किया, इसको विसाल कहते हैं। 2 रोजों को मिला देना, कंप्लीट 2 रोजों को मिला देना, इसको विसाल कहते हैं। ये रोजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। सहाबा किराम ने देखा नबी रख रहे हैं, इन लोगों ने भी रखना शुरू किया, बेहोश हो करके गिरने लगे। नबी ने पूछा क्या बात है, काहे ऐसा हो रहा है? कहा अल्लाह के रसूल, हम भी आपकी तरह रोजा रख रहे हैं। कहा नहीं 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 नहीं, इस मामले में हमको फॉलो मत करो, इसलिए कि मेरा रब मुझको खिलाता पिलाता है, यानी मुझको कुदरती तौर पे जो ताकत हासिल है उस ताकत से मैं ये काम कर लेता हूं, तुम ऐसा काम नहीं कर सकोगे। तो विसाल ये करना, ये उस उम्मत के लिए क्या है?
हराम है। इससे पता चला कि कुछ लोग जो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन बगैर खाए पिए रहते हैं, ऐसा करना क्या है? हराम है, नहीं करना चाहिए। कज़ा के अहकाम आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। बिला उज़्र के कज़ा करने में ताखीर नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद नफिल रोजा आइए, शव्वाल के 6 रोजा, अरफा के दिन का रोजा, आशूरा के दिन का रोजा, पीर और जुमरात का रोजा, अय्याम 20 चांद की तारीख के 13 और 14 और 15 3 दिन का रोजा रखना। या कोई आदमी अगर ताकतवर है, ठीक ठाक है, तो 1 दिन रोजा रखे 1 दिन इफ्तार करे, 1 दिन रोजा रखे 1 दिन इफ्तार करे, यानी महीने में 15 रोजा रखना चाहता है तो वो रख सकता है। इसी तरह से मुहर्रम में कसरत से रोजा रखना, शाबान में रोजा रखना, शाबान में रोजा रखना, ये सब नफली रोजा है। वो दिन जिसमें रोजा रखना हराम है कौन कौन है? ईद और बकरीद, ये 2 दिन रोजा रखना हराम है। इसी तरह से अय्याम तशरीक 11, 12 और 13 जिलहिज्जा, इस दिन क्या है? रोजा रखना हराम है। किसके लिए है? गैर हाजी के लिए, गैर हाजी के लिए। लेकिन अगर हाजी है तो वो 3 दिन रोजा रख सकता है। कौन? तमत्तो करने के लिए गया, जैसे हम लोग जो हिंदुस्तान से जाते हैं तो हम लोग तमत्तो करते हैं, यानी मक्का पहुंच करके उम्रा करके एहराम से निकल जाते हैं, फिर 8 जिलहिज्जा को हज का एहराम बांध करके मिना की तरफ जाते हैं, है ना? तो उसमें हमको क्या देना पड़ता है? हदिया, हदी, एक जानवर नता हुआ एक बकरा ज़बह करना पड़ता है। अब किसी के पास बकरा ज़बह करने का पैसा नहीं है और उसने तमत्तो किया तो क्या करेगा? वो 10 रोजे रखेगा। 3 रोजा हज के अय्याम में 11, 12, 13 जिलहिज्जा को वहां रोजा रख लेगा। वह सब आती नेदार जा तुम, और 7 रोजा जब वापस अपने घर लौट के आ जाएगा तो 7 रोजा रखेगा। पूरा मिला के कितना हुआ? 10 रोजा। तो उसको अब फिदिया देने की, हदी के जानवर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अय्याम तशरीक में इसी तरह से जुमा और हफ्ता को खास करके रोजा नहीं रख सकते, जुमा और हफ्ता को खास करके रोजा नहीं रख सकते। अब कुछ जरूरी मसाइल हैं, उनको देखिए। रोजा की हालत में इनहेलर लेना, बस खत्म हो गया, 5 मिनट और। इनहेलर, दम्मा का मरीज है, दम्मा का मरीज है, रोजा रखा हुआ बेचारा, दम्मा का दौरा पड़ गया, क्या करेगा? हाँ बोलिए, लेगा नहीं लेगा? हाँ बोलिए भाई, लेगा? देखिए, जब इनहेलर शुरू शुरू में आया था ना, तो उलमा ने यह फतवा दिया था कि ले सकता है, लेकिन जब तहकीक हुई तो सही कौल यह समझ में आया कि इनहेलर रोजा तोड़ देगा। क्यों? इनहेलर में 3 चीजें हैं, गौर से सुनिएगा। एक चीज है ऑक्सीजन, जो मारने से छस छस आवाज करता है ना, वो है। दूसरी चीज वो दवा है, जो दवा सांस के नलियों को साफ करती है, खोलती है। और तीसरी चीज उसमें सॉल्ट है। सॉल्ट वो मादा है जो दवा को और ऑक्सीजन को हिफाजत से रखती है, नमकीन मादा जिसको आप कह सकते हैं वो। तो ये तीनों चीज है, और पानी भी है। और क्या है? पानी भी है। अब अगर कोई आदमी उसको मुंह में लेके मारा तो अतिब्बा कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि उसका कुछ हिस्सा फेफड़े में जाता है और उसका कुछ हिस्सा पेट में उतर जाता है। तो अगर पेट में आपने दवा या पानी उतारी है तो रोजा टूटेगा कि बाकी रहेगा? टूट जाएगा। इसीलिए अगर बहुत जरूरी है, बगैर इनहेलर लिए हुए काम नहीं चल सकता, तो इनहेलर ले ले, लेकिन उस दिन का रोजा उसका नहीं होगा। यही राजे मसला है इस सिलसिले में, इनहेलर लेने में। नंबर 2, कोई हार्ट का पेशेंट है, डॉक्टर ने कहा है कि जब तुमको ये कैफियत तारी हो तो एक छोटी सी दवा आती है, नहीं उसका क्या नाम है, आलू पेंट या क्या कहते हैं उस दवा को, वो मसूर के दाने के बराबर होती है। कहते हैं उसको जबान के नीचे रखना पड़ता है उस मरीज को। जैसे रखता है वो क्या होता है, उसका दिल जो है उसकी कैफियत दुरुस्त हो जाती है। जबान के नीचे अगर कोई मरीज दवा रख रहा है तो ऐसी सूरत में उसका रोजा रहेगा या नहीं रहेगा? बोलिए भाई। हाँ, अगर हलक से नीचे उतरी वो दवा तो उसका रोजा
टूट जाएगा। लेकिन अगर जबान ही में रही और यहीं से जज्ब हो गया, क्योंकि जबान के अंदर वो मसाम है जो जज्ब करता है, तो उसकी कैफियत कहते हैं उलमा मरहम की है। मरहम यहां लगा है ना, जख्म हुआ तो जिल्द के अंदर सुराख होते हैं छोटे छोटे, दवा लगा दी, ये सुराख सक करके खून में वो दवा को छोड़ देते हैं और खून फिर जाकर के उस जख्म को क्या करती है, उसके इन्फेक्शन को खत्म कर देती है, उसके इन्फेक्शन को दूर कर देती है। गौर से समझिए, सुनिए मसले को। तो ऐसी सूरत में कहते हैं उसका रोजा क्या रहेगा, बाकी रहेगा। लेकिन अगर हलक के नीचे दवा उतर गई है तो रोजा टूट जाएगा। रोजा की हालत में अगर कोई इंडोस्कोपी करवाता है, उसका रोजा रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए, नहीं रहेगा, उसका रोजा टूट जाएगा। रोजा की हालत में नाक के रास्ते में पाइप डाल करके कोई चीज डाली जाती है अंदर, उसका रोजा रहेगा नहीं रहेगा, रोजा नहीं रहेगा। रोजा की हालत में कान में दवा डालता है, रोजा रहेगा नहीं रहेगा, बोलिए भाई। दो हालत है उसकी। कुछ लोगों के कान के पर्दे में सुराख होता है, अगर डॉक्टर यह कह रहा है कि हम कान में दवा डालेंगे या कान को वॉश करेंगे तो पानी तुम्हारे हलक को पहुंचेगा, ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। और जिसका कान का पर्दा सॉलिड है, ठीक ठाक है, उसमें सुराख नहीं है, सकब नहीं है, तो ऐसी सूरत में कान वॉश करने से रोजा नहीं टूटेगा या कान में ड्रॉप डालने से रोजा नहीं टूटेगा। आंख में दवा डालने से रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा, है? आंख का कनेक्शन हलक से है या नहीं है, बोलिए। कुछ लोगों को जो आंसू आने की कैफियत बंद हो जाती है, तो जब आप जाइएगा डॉक्टर के पास तो उसका छोटी सुई होती है, वो सुई आंख के इस निचले पुतली के ऊपर लगाते हैं और इंजेक्ट करते हैं पानी, और वो पूछते हैं क्या हलक में पानी गिर रहा है, उतर रहा है, इंजेक्ट करते हैं, टप 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 पानी हलक में गिरता है। तो क्या ऐसी सूरत में अगर आई ड्रॉप कोई आदमी आंख में ले रहा है तो क्या उसका रोजा रहेगा या नहीं रहेगा? ये आपका इस्लाम आप क्या समझते हैं? मौलवी लोग खाली यही सब जानता है पढ़ने, अलिफ बा तासा जानता है, ये सब नहीं जानता है। सब तालीम इसमें मौजूद है, सब तालीम मौजूद है। यह आपका दीन इतना मजबूत और मुस्तहकम दीन है, अल्लाह का उतारा हुआ दीन है कि इसमें कोई एक चीज में नहीं छूटा हुआ है, कोई एक चीज में नहीं छूटी हुई है। अब देखिए, हम हार्ट के बारे में भी आपको बताया और दूसरी चीजों के बारे में भी बता रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट की बात भी बता दी। अब उसके बाद आइए आई स्पेशलिस्ट की बात बता रहा हूं। का पूरे जिस्म में आंख से लेकर के हलक का जो कनेक्शन है, रग है, वो पूरे जिस्म का सबसे लंबा रास्ता है, सबसे लंबा रास्ता है। कोई दवा अगर आंख में डाली जाती है, पहुंचता वो हलक तक ही है, लेकिन दवा की मिकदार अगर 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप है तो वो उसी रास्ते में आते आते सूख जाती है, हलक तक नहीं जाती है। लिहाजा उलमा आप कहते हैं कि अगर आंख में कोई आदमी दवा डालता है तो ऐसी सूरत में उसका रोजा नहीं टूटेगा, इल्ला ये कि सिरिंज से पानी इंजेक्ट किया जाए उसके इस आंख के सुराख के पुतली के रास्ते में, और अगर हलक में पानी टप 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 गिर रहा है तो ऐसी सूरत में रोजा क्या होगा, टूट जाएगा। क्लियर हो गया? इंजेक्शन के मुख्तलिफ मसाइल आप समझ चुके हैं। एक मसला खाली बाकी रह गया। रोजा रखे हुए हैं, दांत में दर्द शुरू हो गया बहुत तेज, गए डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, कहा कि यार आपके दांत निकालना पड़ेगा और अभी निकालना पड़ेगा, अगर दर्द से आप आराम चाहते हैं तो। कहा निकालो। और निकालने के लिए सुई देगा नहीं देगा? 2 सुई देगा। एक सुई देगा मसूड़े में और दूसरी सुई देगा उससे लगा हुआ जबान का जो चमड़ा है वहां पे, ताकि आधी जबान को सुन कर दे और मसूड़े को सुन कर दे। तो क्या ये इंजेक्शन रोजे को तोड़ देगा या नहीं तोड़ेगा? बोलिए, बोलिए भाई। नहीं तोड़ेगा। क्यों? इसलिए कि जहां पर उसने इंजेक्शन दिया है उस इंजेक्शन का असर वहीं पे होता है, उससे आगे नहीं जाता है। इसीलिए आराम से इंजेक्शन ले लीजिए और दांत निकलवा लीजिए रोजे की हालत में, इंशाअल्लाह आपका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि खून वगैरह या पानी वगैरह हलक से नीचे न उतरे। इसमें अगर एहतियात किए तो रोजा ठीक रहेगा। रोजा की हालत में जख्म पे मलहम कर लगाना,
बैंडेज लगाना। अभी हमने बताया कि चमड़ा का कनेक्शन खून से है, मरहम यहां लगाते हैं, खून सक करके जिस्म में लेकर जाता है, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। हालत रोजा में डायलिसिस करवाना, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस बीमारी से। हाँ, डायलिसिस का मरीज है, गुर्दे खराब हो गए हैं, रोजे की हालत में डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ती है। जो पेशेंट होते हैं हफ्ते में 2 बार या 3 बार करते हैं, अब वो ठीक ठाक है, जवान है, लेकिन बेचारे को डायलिसिस करानी पड़ती है, तो क्या करेगा? डायलिसिस के हालत में रोजा बाकी रहेगा कि टूट जाएगा? बोलिए भाई, बोलिए, टूट जाएगा। अभी अपने इंजेक्शन से निकालने का, ब्लड निकालने का सुना ना, वो बेचारे का पूरा ब्लड उसके जिस्म से खींच करके मशीन में डाल के फिर मशीन से ला करके इधर डाला जाता है। बसा औकात उसको इतनी कमजोरी हो जाती है कि डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है, थोड़ी थोड़ी देर में उसको ग्लूकोज पिलाता है, उसको दवाइयां देता है ताकि उसका ब्लड प्रेशर क्या रहे, मेंटेन रहे। तो ऐसी सूरत में जब उसके खून को निकाला जाता है तो कहेंगे कि उसका रोजा टूट जाएगा। अगर तुम रुक सकते हो तो इफ्तार के बाद डायलिसिस करवा लेना, और अगर दिन ही में कराना जरूरी है तो ऐसी सूरत में उस दिन का रोजा नहीं होगा। आखिरी बात, रोजे की हालत में ब्लड डोनेट करना, उसके मसाइल आप जान चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे। कुछ सवालात हैं? एक सवाल ख़वातीन की तरफ से है जी। कि रमज़ान में औरतें बैठकर सिर्फ कुरान का तर्जुमा पढ़ती हैं, एक एक पारा करके, और ऑनलाइन में भी पढ़ती हैं, और घरों में ग्रुप बना बंदी करके सिर्फ तर्जुमा पढ़ती हैं बिना मतन के। सिर्फ कुरान का तर्जुमा पढ़ने से सवाब नहीं मिलेगा जब तक मतन ना पढ़ा जाए। मतन कहते हैं किसको? आयत जो है अलिफ लाम मीम तन या ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये मतन है, और जो उसका लिखा हुआ है वो तर्जमा है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि मतन भी पढ़िए, तर्जमा भी पढ़िए, ठीक है? मतन भी पढ़िए, तर्जुमा भी पढ़िए। और मतन असल है, मतन असल है इबादत के लिए, और समझ कर पढ़ना भी मतलूब है, मकसूद है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तर्जमा बिल्कुल नहीं पढ़िए और वो पढ़ने से सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन असल सवाब जो है वो किसका है? मतन का है। असल सवाब मतन का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो आदमी मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, किताबुल्लाह का एक हरफ पढ़ेगा उसको 10 नेकी मिलेगी। फिर नबी ने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो अगर अलिफ लाम मीम हम लोग बोलते हैं तो कितना सवाब मिला? 30 नेकी मिली। समझ गए? 30 नेकी मिली। लिहाजा हमको क्या करनी चाहिए? मतन पढ़ना चाहिए कसरत से, और तर्जमा भी पढ़ना चाहिए। और कोई सवाल है आप लोगों में से? जी। हाँ, तरावी में आप मिल जाइए इशा की नीयत से। 2 रकत में इमाम सलाम फेर देंगे ना, आप 2 रकत उठ करके मुकम्मल कर लीजिए, आपकी तरावी, आपकी इशा की नमाज 4 रकत अदा हो जाएगी, ठीक है? इमाम की नीयत और मुक्तदी की नीयत में इत्तिहाद ज़रूरी नहीं है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ते थे, फिर कुबा वालों में जाकर के नमाज़ पढ़ाते थे। समझ में आ रही बात? नबी के साथ पढ़ी हुई नमाज उनकी फ़र्ज होती थी, और कुबा वालों में जाकर पढ़ाते थे वो क्या होती थी? नफिल होती थी। इमाम नफिल पढ़ रहा होता था, मुक्तदी फ़र्ज पढ़ रहे होते थे, तो नमाज उनकी हो जाएगी। और ये बात अच्छी भी नहीं है कि एक जमात चल रही है और लोग उधर दूसरा जमात बना के नमाज पढ़ रहे हैं, या आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये बात अच्छी भी नहीं है। जी, और कोई सवाल लेना है? चलिए, बहुत वक्त हो गया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।